Hello, everybody. Pranshu Patel here with Pranshu Unfiltered. Today is an exciting day for me. Today, one of my dream has come true. This project that we've started off is not just another business venture of mine, but it's a passion project. This one, I have no pressure that I gotta meet some numbers, which is why at Pranshu Unfiltered, we bring you the real stories from the raw conversations. The goal of this podcast side of things is for our local Edmontonians. I will be bringing local people, local business owners, entrepreneurs, politicians, artists, people from all walks of life. And we'll be going into depth what they are as a person, how did their journey started, what does their everyday hustle look like, just anything and everything that you need to know about the person that you've seen from afar. So I think it's a great way to feel attached with these people and peek, have a little snip peek into their life. And also, these people are more than happy to help any entrepreneurs upcoming or any artists upcoming in that case. So you can just reach out to them, just they're only a phone call away. So if you have a free guidance like that, why wouldn't you? That today's guest, personally, he's my mentor. I've learned a whole bunch from him, a lot of life lessons. A lot of times that, not a lot of times, I would say every time I have nothing to do or I don't know where I'm going, I just pick up my phone call and call this person. So he's always on my favorites, caller ID. This guy, he's an entrepreneur. He's a basic definition of an entrepreneur. He has businesses from all walks of Alliance. He does retails. He's into retail. He's into manufacturing, construction, HVAC. He does signage as well. And he's also a champion into community work. He's been part of the community organization called Garvey Growth Association of Canada since its inception back in 2009. And he's just a great person overall and lots to learn from him. And this is not going to be, I promise you, this is not going to be the first and the last time he's going to be here sitting by us and just inspiring a lot of us. But there's going to be a lot of parts to this journey of his. Without further ado, let's start our conversation with Mr. Rakesh Patel. Um, we like to keep the conversations here raw to bring you the real stories. So, our goal with this conversation is to inspire the next generation. And I feel like there is no one better to start our journey on YouTube than with Mr. Rakesh Patel. So, राकेश भाई, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट पे। कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा हो प्रांशु। थैंक्स फॉर गुड इंट्रोडक्शन। थैंक यू। अगर मैंने कुछ मिस कर दिया हो तो आप वी कैन आल्सो ऐड समथिंग टू नहीं योरसेल्फ। ज्यादा ही हो गए हो, मुझे तो लगता है। सो जब हम बात करते हैं कि आपने जो जो रियल एंटरप्रेन्योर का जो मतलब जो होता है, ठीक है ना, आजकल जो यूथ जो हमारी है वो दे आर ऑलवेज अबाउट कि भाई एंटरप्रेन्योरशिप करनी है, जॉब नहीं करनी है, ये है वो है। बट आई फील लाइक कि सही मानों में जो एंटरप्रेन्योर जो जो डेफिनेशन जो है, बिकॉज एंटरप्रेन्योरशिप इज नॉट अबाउट कि भाई आपने मल्टीपल बिजनेस खोल दिया आप एंटरप्रेन्योर हो गए। यू आपको 360 बंदा होना पड़ता है उसके लिए, राइट? सो आपने अपनी जर्नी कैसे शुरू की और आपके वजह कौन से बिजनेस आपके पोर्टफोलियो में है? एंड देन वी विल आल्सो टॉक अबाउट योर कम्युनिटी साइड ऑफ थिंग्स कि हाउ डिड यू गेट इन्वॉल्व विद द कम्युनिटी? सो इफ यू कैन प्लीज say a few words on that. So listen, about entrepreneurship is normally as a Gujarati is in my blood. So, but it comes from experience, positive energy, and confidence. एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। शेर जो होता है जंगल का राजा बोलते हैं उसको। उसके पास क्या ऐसी चीज है? जंगल में सबसे बड़ा तो नहीं है, Mm. ठीक है, सबसे फास्ट दौड़ भी नहीं सकता, हाइट में भी सबसे बड़ा नहीं है, पर फिर भी ही इज अ किंग। व्हाई? ही इज अ कॉन्फिडेंस। यू नो कि बड़ा वैसा सामने जब आ जाता है तो ही इज अ कॉन्फिडेंस, आई कैन किल दैट। एनर्जी वाइज देखो तो पैसे में या फिर आप एलिफेंट देख लो, एनीबॉडी हैव वे मोर एनर्जी बट ही हैज मोर कॉन्फिडेंस। सो दैट्स व्हाट आई हैव।
I try hard. I don't give up. So those points take me like more forward on each side. So those are the helping me हम्म, as I become a entrepreneur yeah. and multi-business owner. बिकॉज आजकल हम देखते हैं कि जो लाइफ हो गई है ना वो बहुत ही शॉर्ट हो गई है बिकॉज इन द सेंस के लोगों का जो अटेंशन है ना लाइक बच्चों का फॉर एग्जांपल तो दे आर सो यूज टू ऑफ के इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन कि भाई मैंने बिजनेस शुरू किया यार महीने में कुछ नहीं हुआ नहीं यार ये वर्क नहीं हो रहा सो आप जो बोल रहे हैं गिव अप जो गिव अप नहीं करने की जो आपके में जो है वो आई फील लाइक कि आजकल की जो जनरेशन है आई थिंक दे आर मिसिंग दैट अलॉट कि भाई जो पेशेंस की जो गेम होती है कि भाई यू हैव टू हैव द पेशेंस कि यार कल रोम वाजंट बिल्ट ओवरनाइट राइट सो व्हाट डू यू थिंक is the youth and like in terms of the youth like do you because you're also a community leader so you deal with the youth daily basis as well कि भाई there's a lot of people with the volunteering for the big association that you're part of so what do you think is their grooming should be like what do you think is missing Today's life, youth attract with for attraction. Yeah, of course, everybody attract with the attraction, but on the it has to be positive way and कि उसको कंटिन्यू करे. एग्जाम्पल देता हूँ कि आज किसी ने बिजनेस शुरू किया, मेजोरिटी लोग सोच रहे हैं कुछ करना है, जानते सब है पर करते नहीं है. जैसे बोलते हैं ना कि ऐसा है, हम पता है, हम किसी को एग्जाम्पल देने बैठ जाएगा यार तुझे क्या करना चाहिए, हम 1000 चीज बोल सकते हैं पर 1000 में से एक चीज अपने लिए इम्प्लीमेंट नहीं करते. एवरीबडी नो व्हाट टू डू बट right लॉट्स ऑफ पीपल डोंट डू व्हाट दे नो. सो ये चीजें जो है आपको पता है वो करना है तो पॉजिटिव मैनर पे करना है. क्यों नहीं हो सकता है? नंबर वन, कोई भी चीज आप पकड़ के बैठो क्यों नहीं हो सकता? आपने क्या एफर्ट किया हुआ है? रिजल्ट मत देखो क्या होगा. आपने जब आप एग्जाम में फेल होते हो तो आपको ये गर्व होना चाहिए कि यार मैंने तो मेरी साइड से पूरा एफर्ट किया था. फेल हुआ, इट्स अ रिजल्ट. इट कैन बी प्लस माइनस पॉजिटिव नेगेटिव, डजंट मैटर. बट आपको ये गिल्टी अंदर से नहीं होनी चाहिए कि आपने ट्राई नहीं किया था. बिना ट्राई करके आप पॉजिटिव रिजल्ट कभी नहीं मिलेगा. बट ट्राई करने से नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा. उससे बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती. आपने शायद ब्रूसली का एक स्टेटमेंट सुना हो कि मुझे उनसे डर नहीं लगता कि जो 100 मूव जानते हैं, पर मुझे डर उससे लगता है कि जो एक मूव की प्रैक्टिस 100 बार करता है. तो चीज है कि नेगेटिव एनर्जी से अच्छा है कि पॉजिटिव एनर्जी. रिजल्ट विल कम एंड व्हेन रिजल्ट जब भी अच्छा आएगा, बहुत अच्छा आएगा, बिकॉज यू लर्न लॉट फ्रॉम दैट. आई थिंक जो आपने बात की ना कि कंसिस्टेंसी की जो आपने बात की वो मैं भी जब छोटा था तब विनोद हमारे पेरेंट्स भी बोलते थे कि भाई कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस एंड आई फील लाइक यही चीज़ है कि आप अगर आप मल्टीपल बिजनेस भी आप करते हो तो मल्टीपल बिजनेस कुड बी डिफरेंट डिफरेंट लाइन के बिजनेस हो सकते हैं बट उस सब में एक चीज़ कंसिस्टेंट होनी चाहिए कि आपके मैनेजमेंट स्किल्स कि कोई भी आपकी एक स्किल उठा लो तो दैट स्किल ऑलवेज हैज टू बी देयर राइट and I feel like I've seen you very closely. I've seen you grown up. So मैंने अपने में वो देखी है कि भाई you're always positive mindset. You're always consistent, and like you're a good manager of people, and which is why कि आपने जब जब गर्वी गुजरात जब शुरू हुआ था back in 2008-9 वहाँ से आपने इसको इस मुकाम पे पहुंचाया कि भाई now we have 5,000 plus members. इतने बड़े बड़े आप इवेंट्स भी करते हो ठीक है ना so yeah, I mean, I think we should just kind of slow down here, and I just want to rewind the tape and want to learn कि ये जो आपका जो mindset जो है, because ये mindset आना है ना ये बहुत it's not something कि आपको overnight आ जाएगा. ये mindset आपका जो बचपन जो होता है. So we want to learn about your childhood कि what was your childhood like? And when you're growing up, what was your ambitions? Like, were you always ambitious to be a businessman? यस, ऑलवेज एम्बिशंस एज अ बिजनेसमैन. बट जब बच्चे होते हैं चाइल्डहुड में एक नॉटीनेस होती है, राइट? लोगों को कैसे परेशान करना वो अच्छा लगता है उस टाइम पे. स्कूल कॉलेजेस में बहुत टाइम किया हुआ है कि खुद का क्या होगा डोंट केयर, पर जो चीज पहले से तक जो इंटरेस्ट है जिसमें मजा आता है वही करना है. Right. आई डोंट केयर कि ये टीचर अच्छा नहीं लगता,
उसको परेशान करने की लास्ट सीमा मोमेंट तक पहुंच गए थे कि भाई ये तक। कैसा साला ये मुझे परेशान करता है कि मैं उसको कैसे हार्ड टाइम दूं। तो वहां से भी सीखने को मिलता है। एंड व्हेन यू ग्रो अप इन अ स्मॉल टाउन you struggle a lot. Number one, you struggle a lot, so you learn from their point. When you struggle, जुगाड़ू जो बोलते हैं, कुछ काफी जुगाड़ किए हुए हैं शुरू में, धीरे धीरे करते सीखे हुए हैं। इतनी फैसिलिटीज नहीं थी, तो कुछ चीजें लेके फैसिलिटी पूरी खत्म करते हैं, उसको बनाते अपनी फैसिलिटी के अनुसार। तो उससे होता क्या है कि कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि आप ट्राई कर रहे हो। दोस्त आपके ऐसे कि आप जैसे हैं, एक बंदे ने लीड ली, दूसरे ने बोला हाँ अब तू कर, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। तो वो चीजें होती है और वहां से कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। बट ऑलवेज के ये सब करने के चक्कर में आपके जो संस्कार है वो भी साइड में नहीं रहने चाहिए। रेगुलर छोटा सा तब से रेगुलर मंदिर में जाना, बड़े लोगों को सुनना और लिसनर्स, बी अ लिसनर्स, दैट्स मेन पॉइंट। कि आप जब किसी को पूरा समझते हो, किसी की बात सुनते हो, उससे आपको एक पॉजिटिव एनर्जी आती है कि आप सुनो, आपको अच्छा लगता है उसकी बात सुनो, टाइम दो वो चीज में। और एक मेरे पहले से डे वन से जो एक चीज मैंने मैटर की है कि मुझे कोई चीज अच्छी लग गई कि ये अच्छी चीज है, तो ऐसा नहीं कि आज मैंने देखा कि ये मूवी देखा अच्छा है और उसके बाद उसको फॉलो नहीं किया। हम सब सोचते हैं जब मूवी भी देखने जाते हैं तो वो क्या है, वांट टू बी दिस, ऑलवेज हीरो इज लाइक दैट्स व्हाट यू वांट टू बी। बट उसके जो सेक्रीफाइस है उसने क्या किया, आप कभी ट्राई किए कि वो मैं कर सकता हूँ? चलो, सोचा पर उसके बाद अप्लाई किया, कर सकता हूँ मैं। नहीं, हम वो ट्राई नहीं करते, अकेले में ट्राई करो। मैंने किया हुआ है। मुझे एक राइट। दिन एक लड़का सॉन्ग सुन रहा, सिंग कर रहा था, उसकी आवाज इतनी अच्छी नहीं थी पर सॉन्ग के वर्ड इतने अच्छे थे, मुझे पसंद आ गया। तो मैं घर में बाथरूम में जाके वो सॉन्ग गाने लगा। पर नहीं, वर्कआउट नहीं हुआ, पर मुझे लगा कि करना चाहिए, मैंने ट्राई किया। या 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 ठीक है, मुझे इंटरेस्ट लगा, अच्छा लगा होता, मैं शायद अच्छा सिंगर भी होता, पर एफर्ट करो। हम क्या है कि लोगों से, हमारे से ज्यादा लोगों की परवाह करते हैं कि आप मुझे कैसे देख रहे हो। आई डोंट केयर, वो या मैं कभी भी नहीं हूँ। Yeah, I think just sorry to interrupt you, but I think it's there's a quote कि trying and failing is better than failing to try. I think a lot of people just they just think oh this is impossible. ये चीज possible ही नहीं है, मैं कर ही नहीं सकता इसको. But भाई try तो कर ले एक बार. हम्म, You take the first step और फिर उसके बाद आगे आगे रास्ता खुल जाते हैं आपके लिए, ठीक है ना? बट लोग 100%। आज फर्स्ट स्टेप लेना नहीं चाहते. वो क्या बोलते हैं कि कंफर्ट जोन में आ जाते हैं. एंड आई थिंक द कंफर्ट जोन कम्स फ्रॉम द लाइक आपने जो बात की कि आपका जो बचपन जो रहा है, आपने वो गांव में अपने आपका बचपन था. सो आई ऑलवेज थिंक अबाउट दिस कि फॉर एग्जांपल मेरा बचपन, आई वाज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन अ सिटी, इन अ बिग सिटी इन इंडिया, ठीक है ना? तो आई ऑलवेज वंडर कि कोई बंदा अगर बिग सिटी में ग्रो हो रहा है वर्सेस कोई बंदा कोई गांव में ग्रो अप हो रहा है, सो व्हाट इज डिफरेंट कि भाई क्या हो रहा है, क्या व्हाट्स द डिफरेंट कि भाई ये जो गांव वाले जो होते हैं, हाउ कम दे वो लोग फाड़ देते हैं, वो बोलते हैं ना कि भाई उसने फाड़ दी, मतलब उसने धंधा ऐसा किया है कि मतलब सबको पीछे छोड़ दिया. बट आई थिंक यू सेड इट करेक्टली कि इट्स अबाउट द जुगाड़ माइंडसेट कि भाई देयर इज लिमिटेड रिसोर्सेज बट ड्रीम्स ऐसे हैं कि भाई चांद तारे तक जाना है, राइट? आई थिंक वो मिसिंग है. और स्पेशली अब जब बच्चे यहाँ पे ग्रो हो रहे हैं तो यहाँ पे तो इतना ही कंफर्ट उनको मिलता है कि देव नेवर सीन द स्ट्रगल, क्योंकि उनके पेरेंट्स ने स्ट्रगल कर दिया इधर कंट्री में आके, राइट? सो दैट्स इम्पॉसिबल, विच इज व्हाई आई फील लाइक डू यू फील लाइक kids nowadays are not as ambitious as the people from the village or from India, do you think? Or are they more ambitious? No, they are more ambitious, but they don't have right guidance. उनके पास ये होता है, आजकल वो अपने पेरेंट्स की जगह पे एक यूट्यूबर ने बोल दिया उसको सुनना ज्यादा पसंद करते हैं। क्योंकि आपको ये चीजें जो मीडिया पे मिलती है, सोशल मीडिया पे मिलती है, या कहीं से सुन लो कि वो बेसिकली ओरिजिनल नहीं है। मैं आपको मेरी अच्छी स्टोरी बताना लगूं, अच्छा हो, मेरा स्ट्रगल ही ना बताओ, तो इट्स इजी टू इम्प्रेस समबडी ऑन मी कि मेरे पास ये है, ये है, ये कर लिया है मैंने, ये कर सकता हूँ, दिस इज माय नेटवर्थ। वो चीज नहीं, पर उसके पीछे की स्ट्रगल कोई देखना नहीं चाहता। आजकल के बच्चे में
पहले तो बहुत सारे ऑप्शन है। बंदा तब ग्रो होता है जब उसके पास एक ही ऑप्शन, यू डोंट हैव अदर ऑप्शन। क्या करना है, कैसे करना है, तो तुम्हें फाइंड आउट करना है। तो वो होता है, कई बच्चे कर लेते हैं, पर वहां पे उसको पेरेंट्स को थोड़ा पुश उधर करना पड़ेगा कि आपके पास यही ऑप्शन है, इसी में आप आगे बढ़ो। और उसके साथ के पेरेंट्स को उसका डिसाइड नहीं करना है, पर मेक श्योर कि वो इंटरेस्टेड वही पार्ट में हो। कोई बच्चा स्पोर्ट में इंटरेस्टेड हो तो उसको स्पोर्ट ही कर दो, स्टडी कर और स्पोर्ट ही कर, दूसरी चीजें छोड़। तो ये एक ऑप्शन देना बच्चों को कि तुझे जो पसंद है वो कर, बट उसके लिए प्रूव करके दिखा कि यू आर ट्राइंग ऑन दैट। Hmm. आज के बच्चे वो ट्राई नहीं करते। तो बच्चों को ये जरूर जरूर समझना चाहिए, वो आज सुन रहा है तो वो कि अब ट्राई करो, रिजल्ट जो भी आएगा, पर ट्राई करने से जो आपको अंदर से फीलिंग जो पॉजिटिवनेस आएगी वो अनबिलीवेबल होगा। रिजल्ट नहीं आया, आपने दूसरा ऑक्यूपेशन चेंज किया, सब कुछ चलता है, पर ट्राई किया, कहां तक ट्राई किया। आपने बोला कि फर्स्ट स्टेप इज हार्ड, नॉट फर्स्ट स्टेप इज हार्ड, फर्स्ट स्टेप एवरीबॉडी इज ट्राई टू टेक ऑन द फर्स्ट स्टेप। आज मुझे बिजनेस शुरू करना है, मैं शुरू कर दूंगा। फर्स्ट स्टेप से सेकंड स्टेप तक जाने की जो जर्नी है, दिस इज अ बिगेस्ट चंक इन योर लाइफ। आप वो जर्नी कितने पॉजिटिवनेस से और कितने जल्दी पास करते हो, उसमें कितने एफर्ट लगाते हो, दैट्स व्हाट डिसाइड योर फ्यूचर। Right. Very, very, very well said. And I think it's important because business shuru karna to, I mean, anyone can start the business, but to Exactly. sustain it and to be like we were just looping back to the previous conversation, कि भाई to sustain it and also to be patience रखो, हो जाएगा, just be consistent, and yeah, that's the key. So नॉट अ पेशेंस, एक जो चीज है पेशेंस नहीं, hmm, एग्रेसिवनेस। कितने एग्रेसिव हो करने के लिए। कल ही एक लड़के से बात हो रही थी, कॉल किया, राकेश भाई यार एक बिजनेस करना चाहता हूँ, राइट। मैंने कहा क्या करना चाहता है, बोल रहा है आज अमेजोन में चीजें बेचते हैं तो अच्छा प्रॉफिट मिलता है, तो चाइना से चीज मंगवाएंगे और उसमें हम सेल करेंगे, ऐसी चीजें सेल करेंगे। जैसे मैंने कहा एग्जाम्पल क्या सेल करेगा, बोल रहा है आगे हेलोवीन आ रहा है, तो हेलोवीन के क्लोथ वो कहाँ एक्सपायर होते हैं, hmm, ठीक है। कहा, मैंने कहा कितने लोग अमेजोन में है जो हेलोवीन के क्लोथ, बहुत सारे। मैंने कहा स्टडी किया उसके बारे में, नहीं नहीं वो बेचते हैं, मेरा भाई भी इंडिया में बेचता था। ओके, चलो बिजनेस स्टार्ट करना है तो ले आएगा। नंबर वन, तेरे पास कितने पैसे हैं, एक कंटेनर मंगवा सकता है, दो कंटेनर मंगवा सकता है, नहीं वो थोड़ा बहुत आधा कंटेनर। तो पहले एक आप देखोगे वो कितना रेडी है। मुझे कॉल ऐसा किया था जैसे आप इसका कंटेनर रास्ते में और कल से शुरू करने वाला है। वो बोल रहा है दो चार स्कीड मंगवाएंगे। ओके, तो स्टार्ट करेगा, कंपटीशन क्या है, उसने कुछ देखा नहीं है। दूसरा, मैंने कहा तेरे पास पैसे है वो इतना रोकने के लिए, हाँ। वो बेसिकली उसमें कॉन्फिडेंस नहीं था, मतलब पैसे भी इधर उधर से जुगाड़ कर रहा है। hmm, उसके बाद बोला, मैंने कहा चलो हेलोवीन साल में एक बार आता है, इस बार ही हेलोवीन में 10% या 15% चीजें बिकी, या चल अच्छा है कि तूने 50% चीजें बेच दी, 50% जो रह गई उसके लिए स्टोरेज के लिए जगह है तेरे पास। बोल रहा है नहीं। मैंने कहा कहाँ रहता है, अपार्टमेंट में, वो भी दोस्तों के साथ शेयर करता है। तो आप प्रिपेयर हो पहले, तो क्या आपको करना है, उसके पहले क्या क्या आगे होगा, क्या क्या चाहिए आपको। पहले मनी चाहिए, उसको होल्ड करने का पावर चाहिए। ऐसे में बिजनेस स्टार्ट करो कि आपके पास, जब आप पार्ट टाइम या थोड़ा बहुत स्टार्ट कर रहे हो, तो ऐसे शुरू करो कि उसके नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों पासे देखो। और मैं आपको बोलता हूँ, चेक 80% पॉजिटिव, 80%, डोंट थिंक नेगेटिव। इफ यू आर कॉन्फिडेंस यू विल डू इट, नो मैटर व्हाट, यू विल डन इट। hmm. बट 80% पॉजिटिव के साथ 20% नेगेटिव, और उसके प्रोज एंड कॉन्स। नहीं बिजनेस चला तो क्या करोगे, वो स्टोरेज के लिए नेक्स्ट ईयर के लिए वेट करने की ताकत है नहीं है। तो आपको पहले ये होना चाहिए कि नहीं है तो स्टोरेज के लिए फैसिलिटीज नहीं है, तो प्रोबेबली आई एम नॉट इन गेम, और फाइंड आउट दैट वे। जैसे कई चीज है कि आप आगे पीछे का नहीं सोचते, उसके पास सेविंग होगी शायद 5-10 हज़ार डॉलर, सभी लगा दिया, तो फिर क्या करेगा वो बंदा आगे। Yeah. तो वो आपको नेगेटिव के बिजनेस तो करना ही चाहिए, अच्छी है जॉब है,
यार इतने पैसे तो मिलते हैं, कोई टेंशन नहीं है। वो एक माइंडसेट पहले क्लियर करो। और आप कुछ करना चाहते हो तो जो वो फील्ड में कोई है या फिर जो बिजनेस करता है उससे पूछो कि कैसे होगा। बट राकेश भाई दिक्कत ये भी होती है ना कि स्पेशली लाइक हमारे देसी कम्युनिटी में ये थोड़ी नेगेटिव चीज़ कह लो आपके वट एवर कह लो, बट लोग गाइडेंस सही से नहीं देते। वो बोलता है कि यार वो ये मेरा कंपटीशन आ जाएगा, ये मुझे खींच के नीचे गिरा देगा, है ना, ये भी बहुत होता है, ठीक है ना। तो आई मीन आई एम ग्लैड कि यू आर दैट काइंड ऑफ पर्सन कि यू आर वेरी अप्रोचेबल, एंड आई नो दैट बिकॉज जब मेरे पास भी इतने क्रेजी आइडियाज होते हैं ना, पता है कभी कभी होता है कि आप शावर ले रहे हो और आपको क्रेजी आइडिया आपको आ रहा है, ठीक है ना। सो शावर लेने के बाद मैं फर्स्ट कॉल करता हूँ राकेश भाई को, वो उठाते नहीं उठाते वो तो 2 नंबर की बात है। बट बट कंप्लेन है अभी। नहीं, वो क्या दिक्कत क्या है आपकी, आपको यार कोई कोई बंदा आपको रखना पड़ेगा फुल टाइम की, मतलब आपका असिस्टेंट कोई बंदा। ऑलरेडी है, असिस्टेंट है, तो आप देखो मुझे कॉल करो और कॉल मैं नहीं उठाऊंगा तो हाँ, मेरा मैनेजर ही उठाएगा। सो यू नो राकेश भाई का ये चीज है कि भाई ही इज ऑलवेज अप्रोचेबल, और जब भी फोन उठाते हैं और बात होती है तो बात ऑलवेज यही होती है, और वो आपको आपको मेंटली वो चैलेंज करते हैं कि भाई ये सोचने की बात कि फॉर एग्जांपल व्हाट ही वाज टॉकिंग अबाउट कि भाई जो हैलोवीन का जो द होल थिंग, ही कुड इजीली उन्होंने बोल दिया होता कि भाई हाँ हाँ हाँ, तू कर ले, नहीं सही हो जाएगा तेरा, सही हो जाएगा, ये है वो है, बिकॉज ही वुड नो इन हिज माइंड कि वो ही वुड फेल, बट व्हाई दैट्स द होल पॉइंट, राइट। और जब मैं बिजनेस में जब आया था, एंड आई स्टार्टेड माय फर्स्ट बिजनेस व्हेन आई वाज 27, ठीक है ना। बट 27 को मैंने जब शुरू किया बिजनेस, तो मेरा जो कजिन है, मेरे मामे का लड़का, तो उसने मुझे देखा देखी, उसने बोला कि यार प्रांशु भाई मुझे भी ऐसा ऐसा कुछ करना है यार, कुछ बिजनेस करना है। मैंने बोला देख, बिजनेस कर तू, और मैंने उसको गाइडेंस भी दी। सो आई मेरा ऑलवेज ये होता है कि भाई अगर मैंने 27 में शुरू किया ना, तो आई वांट समबडी टू स्टार्ट एट 17, सो ही इज सेविंग 10 years and he's 10 years ahead of me, because I feel like we are not each other's competition, ठीक है ना। ऊपर वाले ने जितना लिखा है सबके लिए बराबर ही लिखा हुआ है, सबको अपने हिस्से का मिल जाएगा, ठीक है ना। अगर आप किसी को आप हेल्प कर रहे हो तो आई फील लाइक यूनिवर्स आपको मल्टीप्लाई करके आपको वापस दे रही है। दैट्स द माइंडसेट दैट आई गो विद। आई फील लाइक you are similar mindset, because I feel like समटाइम्स क्या होता है कि जब किसी का मुझे फोन आता है तो उसके इतने क्वेश्चन नहीं होते, मेरे उतने आंसर होते हैं उसके लिए। नहीं, राइट। वो भी चीज है कि आप जब किसी बंदे को, नए बंदे को जब एज ए नॉलेज आपको भी एक एडवाइस है और हर लिसनर को, तो उसको इतना भी इंफॉर्मेशन मत दो मत कि दो वो यार। डाइजेस्ट ना कर पाए। तो या सिंपल के उसको 2-3 चीजें बोलो, यस 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 करना चाहिए, 100% बिजनेस करना चाहिए, बट कंसिडर दीज हाँ, थिंग्स। कंसिडर दिस थिंग्स। और उसके बाद वो बंदा वहां से वो हमें पॉजिटिव लेके जाता है, नेगेटिव लेके जाता है, उसके ऊपर उसके है। ऊपर है। पर एग्जैक्टली। आपका एज अ बिजनेसमैन या किसी को मैं जब एडवाइस करता हूँ, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं उसको अच्छी बात भी बोलूँ, बुरी बात भी बोलूँ, मेक श्योर वो फेल ना हो। ऑफ कोर्स। मेरा टारगेट ये होता है कि ना कि वो ना बिजनेस करे, मेरा टारगेट ये होता है कि आप बिजनेस करो। और मेरे सर्कल में जितने भी लोग हैं, लकीली मैं डे वन से बिजनेस करता था। जब 2006 में कनाडा आया, 2 साल सर्वाइवल के लिए जॉब की, 2008 से बिजनेस कर रहा हूँ। जब जॉब छोड़ी, मेरी फैमिली वालों ने बोला था यार पागल हो गए, प्लांट ऑपरेटर की जॉब कोई छोड़ता है? हम सुपर स्टोर की जॉब नहीं छोड़ते हैं। तो ये चीजें होती थी कि भाई आपको अंदर से है। चलो मुझे पहले से था, इंडिया में भी यू सेड एज 17 आई वाज ऑलमोस्ट एज 17 आई वाज इन अ बिजनेस, राइट। या तो 10वीं में था तब गेहूं लेके सिटी में बेचने गया था। उस टाइम पे ऑप्शन नहीं था। और स्टोरी क्या थी कि मेरे दोस्त के वहां पे गेहूं इतने अच्छे हो गए थे कि अच्छे लग थे और वो सेल नहीं कर पा रहा था मार्केट में। तो हमने ट्राई किया। एक दोस्त था जिसके वो अपने वो ट्रक्स चलाते थे। उनको बोला यार तेरी ट्रक्स देखो, पैसे मिलेंगे तुझे भी दे देंगे, ट्रक्स लेके आना पड़ेगा तुझे। जिसके पास गेहूं थे उसके गेहूं की बोरिया बनाई और गुजरात में है सूरत, वहां जाके मैं वही से ट्राई हूँ। किया। हाँ। ट्राई किया तो पहले पता नहीं था वो, क्योंकि वो जो बोरिया थी वो कुछ प्रोफेशनल नहीं थी, प्रिंटेड नहीं थी, पूरी फटी हुई जॉइंट की वाली बोरिया से शुरू किया। सूरत जब गए तो मेरे जो रिश्तेदार थे उन्होंने बोला यार अच्छा प्राइस है, तू 200 का लेके 1000 में भी बेच सकता है, बट एक चीज तूने जो मिस कर दी है कि बोरिया प्रिंटेड होनी चाहिए। प्रोफेशनलिज्म। यस। और जब अपार्टमेंट के नीचे खड़े फटी हुई बोरिया में कोई नहीं आता था। हाँ। वही चीज उन्होंने बोला, राइट अवे इम्प्लीमेंट किया।
प्रिंट करवाई, उसके ऊपर ही दूसरी बोरी चढ़ा के उसको सेल किया। मुझे पता है उस टाइम हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था, 3 दिन का था उस टाइम पे, 18,000 रुपीज़ का प्रॉफ़िट हुआ था, मेरे पार्ट में आया था। वाओ! तो मैंने वो $18,000 रुपीज़ में सूरत से ही एक बाइक खरीद ली और वो जो ट्रक लेके आए थे उसी में चढ़ा दी कि मुझे चाहिए। वही चाहिए। मेरे घर पे किसी को पता नहीं था कि मैंने ये करके आया हूँ। या घर पे बोल भी नहीं सकते, वो पता है कि जिस फैमिली से मैं बिलॉन्ग करता हूँ वो मानेंगे ही नहीं कि तू 3 दिन में इतने पैसे कमा कमा सकता है, सकता है। राइट? या क्योंकि उस टाइम पे ऐसा था कि 2000 महीने में आते थे या शायद, और राइट। उससे पूरी फैमिली का 5 बहन 4 बहनें थी, हम 5 भाई-बहनों का या घर चलता था। या तो घर पे ये भी बता नहीं सकता था ये मेरी खुद की बाइक है। राइट। तो मैंने बताया दोस्त की है, हमें रखनी है इधर सिर्फ। तो ऐसे है कि ट्राई करो, पॉजिटिव नेगेटिव होता जाता है, या इम्प्लीमेंट करो, या कोई अच्छी चीज लगे उसको अप्लाई करो, ऑफ कोर्स। दैट्स इट। सो दैट ब्रिंग्स मी टू क्वेश्चन कि यूजुअली क्या होता है कि आपने अपने आप को, कोई भी बंदा है, ठीक है ना, जो ग्रो अप हो रहा है, उसको अपने आप पे कॉन्फिडेंस आने से पहले कोई और भी आपको कॉन्फिडेंस देता है कि भाई नहीं, तू कर, तू जो कर रहा है वो सही कर रहा है। तो हु वाज दैट पर्सन कि यार उसने बोला कि यार राकेश તારામાં છે તું ફાડી લઈશ, કે એવું કે એમ કે તું ભલે તું ગામડાનો છે બટ તારા તું કેનેડામાં જઈને તું મોટા મોટા લોકો જોડે બેસીશ ને ઉઠીશ ને ઓલ ધેટ સ્ટફ. एक जो मेरे में जो किसी ने कॉन्फिडेंस देखा था, मेरे केमिस्ट्री टीचर थे, एचवी शाह करके थे। आज भी वो डभोई टाउन में उनके क्लासेस चल रहे हैं, आज तो उसका स्कूल भी खोल दिया है उन्होंने। तो उनकी एक पॉजिटिवनेस थी और उनका एक एग्जाम्पल था बहुत बढ़िया बढ़िया, कि 12वीं में कुछ वो 4 या 5 बारी 5-6 बारी फेल हुए थे, और उसके बाद नॉमिनल 36% से 12 साइंस पास किया था। उसके बाद जब कॉलेज में गए तो कॉलेज में टीचर ने उसको बोल दिया कि यार तू क्या साइंस लेगा, तुझे साइंस लेना ही नहीं चाहिए, तू कॉमर्स ले। तो उन्होंने वो चैलेंज ली और फर्स्ट ईयर बीएससी में ही वाज अ टॉपर। વાવ. सो ऐसे एग्जाम्पल को हम अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते थे, तो मैं काफी प्रभावित था और उनका सपोर्ट बैकअप था मुझे, के बैकअप मीन्स के जब कॉलेज में उसी टाइम पे थे कि कॉलेज गुजरात यूनिवर्सिटी का, जब हमारे इंडिया में होता है नवरात्रि, तो सबसे ગરબા હોતા है, बढ़िया हाँ जी. गरबा का इवेंट होता है, राइट? तो उससे नॉर्मली पहले एग्जाम खत्म हो जाते थे। तो वो पहली बार यूनिवर्सिटी ने बोला कि नहीं, एग्जाम नवरात्रि के बाद शुरू। तो एक ये था कि यार सर स्टडी कब करेंगे? स्टडी करने बैठ गए तो डांडिया, और पहले ये नहीं था कि घर से जाने नहीं देते थे। बोले यार एग्जाम है आगे, अब जा नहीं सकते। तो पूरी यूनिवर्सिटी को चैलेंज करने लगे थे 4-5 दोस्त। हम्म. तो जब उन्होंने थोड़ा बैकअप दिया, या इफ यू थिंक दैट इज राइट, यू शुड से टू योर टीचर। एंड उस टाइम पे पूरी कॉलेज में ऑलमोस्ट 2-2,500 लड़कों को एग्जाम में पहले पेपर में ना जाए कि हम अपोज करते हैं, बॉयकॉट करते हैं एग्जाम को। तो उस टाइम पे था कि जब शुरू किया हम लोगों ने, तो तकरीबन 10 लोगों ने पहला एग्जाम दिया था, और वो भी 10 ऐसे थे, इधर वो मैनेजमेंट के बंदे थे या फिर टीचर्स के, उसके जिसके पेरेंट्स टीचर्स थे, हम्म. और वो भी टीचर्स अपनी गाड़ी में लेके आए थे। वरना हमने गेट रोक लिया था, हर एक को स्टॉप किया था। चलो वो अच्छी बात है, बुरी बात है, अलग बात है, पर जब ऐसी कोई मतलब चैलेंज आई थी तो हमने पूरा ट्राई किया था। और ऐसे उन्होंने का बैकअप था कि आपको लगता है वो गलत है तो आपको आवाज उठानी चाहिए, हम्म. और हमने ट्राई किया। चलो दूसरे दिन लोगों ने समझा ये अच्छी चीज नहीं है, तो दूसरे तीसरे दिन एग्जाम शुरू भी हो गए। तब हमने ये चीज एज ए यूनियन लीडर या स्टूडेंट लीडर बोल सकते हैं कि भाई जिसने पहली एग्जाम नहीं दी वो सभी पास होने चाहिए। ओह. तो वो चैलेंज प्रिंसिपल को देना, और प्रिंसिपल ने वो चीज हमें मान भी ली। आई एम टॉकिंग अबाउट आई थिंक 2001 इन Oh wow. DN साइंस कॉलेज डबोई। दिस रियलिटी इज नॉट लाइक अ स्टोरी, बट ये किया था। तो वहां से वो उन्होंने कॉन्फिडेंस दिया था कि करो, आपको अच्छा लगता है तो करना चाहिए, और किया था। और वहां से ऐसे करते करते कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। हम्म. हमारी यूनिवर्सिटी में कभी भी एनुअल फंक्शन नहीं होता था, नेवर। तो जब हमने प्रिंसिपल को बोला कि ऐसा करो, प्रिंसिपल बोल रहा है कभी हुआ नहीं है, कौन करेगा, उसके पीछे एक्सपेंस होते हैं,
तो जो चैलेंज ले लिया कि हुआ नहीं मतलब ये थोड़ी है कि नहीं नहीं होगा। होगा। तो उस टाइम पे पॉलिटिशियन को मिले, जो पैसे वाले लोग थे जो कम्युनिटी में थोड़ा बहुत हेल्प करते, उनको मिले, बोला ये करना है। हुँ, और उन्होंने छोटा मोटा सपोर्ट दिया पहले तो, हाँ करो हम आपके साथ है। यार थोड़े पैसे भी चाहिए क्योंकि ऑर्गेनाइज करना है। तो बोले देंगे, अब करो तो सही। तो हुँ, बिना पैसे से थोड़ी इवेंट होता है। पर फिर भी ट्राई किया, कुछ दोस्तों ने थोड़े पैसे निकाले। और मुझे पता है कि हमने पहला एक ट्राई किया था। उस टाइम पे तो कैमरास भी मतलब सेल फोन वगैरह नहीं थे, स्मार्टफोन वगैरह इतने। हुँ, तो कैमरा में रील बनाते थे, सभी कुछ फोटो खींचते थे। तो हमने क्या किया, कॉलेज में एक स्टेज होता था। स्टेज पे 5 लड़कों को हमने, 5 लड़के ऐसे कि जो सबसे हाइटेड है कॉलेज में, सबसे छोटा है, हुँ। सबसे मोटा है, ऐसे लड़कों को स्टेज पे खड़ा किया। सब उनको बोला कि आप सब लोग आगे खड़े, पहले मोटा जो सबसे हाइट वाला है सबसे छोटे को देख के हंसेगा, छोटा वाला बड़े को देख के हंसेगा, जो मोटा है पतले को देख के हंसेगा, पतला मोटे। तो ऐसे करके एक जो कन्वर्सेशन हमने स्टार्ट किया, कि हंसना शुरू किया, कुछ भी कुछ भी नहीं, एक नहीं। जस्ट ब्लाइंड आइडिया था माइंड में। राइट। और वहां से हंसते 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 लोग, कॉलेज के सभी लड़के हाँ, इकट्ठे हो गए, हाँ। 200-400 लोग इकट्ठे हो गए। तब जाके बोला यार ऐसा कुछ हम इवेंट करते हैं, राइट। क्यों नहीं। और उससे हमने जो इवेंट किया, ऑलमोस्ट उसमें हमारे पैसे इन्वॉल्व ही नहीं थे। हुँ, सभी ने परफॉर्मेंस अपने अपने हिसाब से दिया। हुँ, फिर फाइनली कॉलेज को बोल दिया स्टेज आपको अरेंज करना पड़ेगा। हुँ। हमारे जो कैंटीन वाले भाई थे उनको बोला यार समोसा तू दे देना। बोल रहा है नहीं नहीं आपको पैसे देने पड़ेंगे। तो हम ये करते थे कि पैसे देने की इतना था नहीं, तो जब हम कुछ भी खाना खाने जाते थे तो नॉर्मली दोस्तों का होता है कॉलेज में कि आज इस आपको पकड़ लिया यार, आज तो ही ये करके आज आता तू आता तेरा खिलाएगा, आज टर्न समोसा तू खिलाएगा। नहीं, है। तो ऐसे करके उससे पैसे दिलवाते थे। और हमने तो खाया हुआ है तो हम भी पैसे कुछ देके वो उसको दे देते कि अरे तू 25 पकड़। हुँ, ऐसे करके उसके पास एक फंड जमा करते थे। कोई आया, हाँ। यार थोड़ा बहुत अपने थोड़ा डाल दे, एनुअल थोड़ा डाल दे। एनुअल फंक्शन के लिए कुछ डोनेशन कर दो, राइट। राइट, राइट। तो कभी ऐसा नहीं सोचा कि 200 500 हजार मिल जाए। हाँ, 2 5 20 से शुरू किया था और एनुअल फंक्शन किया। उसके बाद कॉलेज ने बहुत सपोर्ट किया, बोला डोंट वरी, वी विल बेयर द वो कॉस्ट बेयर द द वे कॉस्ट। इट्स डन, राइट। राइट, राइट, राइट। और उसके बाद जो इंटरेस्टिंग पार्ट था, क्योंकि हमने तो सेविंग कर ली थी वो समोसा हाँ, वाले कैंटीन में। हाँ। तो नेक्स्ट ईयर पूरा 1-2 साल हमारे वही सेविंग में उसमें से काम होने लगा। तो ये तो जो अच्छी चीज होती है ऐसे, जब ट्राई करो तो रिजल्ट मिलता है, राइट। ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। और ये दिस कम्स बैक टू योर जुगाड़ कि भाई जुगाड़ किया आपने। या और जुगाड़ वो आई थिंक यूनिवर्सिटी और कॉलेज है ना यही देखती है और बच्चों में कि भाई आप में विलिंगनेस कितनी है कुछ भी करवाने की, कुछ भी करने की विलिंगनेस कितनी है। और आई थिंक इट्स द सेम फॉर इवन लाइक आई हैव 2 किड्स एंड यू नो आई इफ दे डू इफ दे हैव सम विलिंगनेस कि भाई नहीं नहीं मैं आई विल डू दिस, so then I just want to see that as a parent and I'm sure it's the same for you as well, या right? कि एग्जैक्टली। अगर विलिंगनेस है और वो दिखा रहा है तो फिर अब बोले कि यार चल कोई बात नहीं यार अपना ये मुंडा है कोई देख लेंगे कोई बात नहीं, राइट? मेरे सो डैड का ऑलवेज था कि जैसे मैं नॉटी था, लाइक लोगों को मार के आना, कुछ ना कुछ पंगे होते रहते हाँ। थे गांव में। तो कोई वैसे भी थोड़ा आउट ऑफ कंट्रोल था, तो मेरे डैड को किसी ने कंप्लेन करनी है, डैड ने एक ही आंसर करना है, बेटर है तो उसको ही बोल दे सीधा, मुझे क्यों बोल रहा है, वो मेरी वैसे भी नहीं सुनता। तो हिम्मत है तो बोल दे उसको ही, राइट। राइट, राइट, राइट। तो एक ऐसा था, वो भी चीज को आप नेगेटिव लेते हो या पॉजिटिव लेते हो, तो मुझे ऐसा था कि भाई मेरी जो प्रॉब्लम है मैं ही सॉल्व करके आऊं। ऑफ कोर्स। वो घर पे प्रॉब्लम आए नहीं। आए नहीं, या पर घर पे आए तो बोल रहे हैं कि तेरी प्रॉब्लम है तू देख। अब तो देख। या नहीं नहीं बट मम्मी इन्वॉल्व होती तो थी पहले हर चीज में। आपको ये सबसे ज्यादा किसके साथ फटती थी, मम्मी पापा? मम्मी, डैडी का तो टेंशन ही नहीं था। टेंशन ही नहीं था। वो साल में एक यूजुअली बार, अदर वे अराउंड होता है बाकी भले हाँ, ही वो वो जो साल में एक बार ही गुस्सा होते थे, मम्मी का हर दिन का चलता था। वो सुनना ना सुनना आपके ऊपर हाँ, बस वही। है। ठीक है। सो अगर अगर हम देखें तो जस्ट गोइंग बैक जस्ट लास्ट थिंग आई वांट टू आस्क इज कि इफ आई वर टू आस्क अ 16-year-old ऑफ राकेश पटेल कि भाई जब आप 16 साल के हो, सो आई थिंक 16 साल के कब होते हो आप, ग्रेड 10वीं 11वीं होते हो, 10 11 10 11 11 या 12 के आसपास होगा ना? तो आपने जब 12वीं अपने पास की तो दैट माइंडसेट आई वांट टू नो दैट माइंडसेट कि भाई 16 साल के राकेश पटेल का क्या क्या माइंडसेट था कि भाई अभी लाइफ में क्या करना है, बिकॉज आपने ये सारा कुछ किया, यू गॉट टू अ लेवल, आई थिंक कॉलेज की आपने बात कर दी कि वो कैंटीन वगैरह की, राइट? सो जस्ट आई जस्ट वांट टू रिवाइंड अ लिटिल बिट अगेन कि
व्हाट वाज योर माइंडसेट कि भाई क्या करना है लाइफ में? अब तो आपने यू ऑलरेडी नो कि भाई आपने 16-17 साल की उम्र में आपने धंधा भी शुरू कर दिया था, ठीक है ना? तो अब क्या करना था? अभी डिग्री लेनी थी, धंधा करना था, फैमिली से क्या प्रेशर था? व्हाट वाज दैट लाइक? व्हाट वुड अ 16 ईयर ओल्ड थिंकिंग? नहीं, वही 10th के बाद जब मुझे करना था, आई एम एवरेज स्टूडेंट, लाइक 60-65% आते थे, तो करना था कि इतना टेंशन नहीं लेना, गांव की स्कूल है, गांव में कॉमर्स का चल रहा था, 11-12 कॉमर्स में हम जा सकते हैं, साइंस लेना नहीं था। हुँ, घर का प्रेशर है, प्रेशर था कि साइंस लो, साइंस वाले बच्चे ही आगे बढ़ते हैं, आगे ये बढ़ वो। तो घर वालों को, मॉम डैड को तो ऐसे तैसे घुमा के स्कूल में ही, गांव की स्कूल में ही दाखिला ले लिया था। ऑलमोस्ट 3 महीने मैंने 11th कॉमर्स किया। उसके बाद मेरे मामा जी आए, बोल रहे तू पढ़ाई लिख रहा अच्छा कर रहा है तो साइंस में जाना चाहिए तुझे, कॉमर्स तेरे लिए नहीं बनाया है। नहीं नहीं, मैं करवाता हूँ तेरा एडमिशन। हुँ, तो उन्होंने डभोई दयाराम करके स्कूल थी, उसमें मेरा एडमिशन करवाया साइंस का। अभी आप सोचो, मैं जिस दिन स्कूल स्टार्ट कर रहा हूँ, नेक्स्ट वीक में मेरी फर्स्ट एग्जाम है 11th साइंस की, जो कुछ भी नहीं आता है। हुँ, पढ़ा हुआ है 11th कॉमर्स का, और उस टाइम पे 3 महीने के बाद का तो स्ट्रगल। पहले गांव में पढ़ाई की हुई है, सब दोस्त वगैरह थे वहाँ पे, ना कोई जानता है। दूसरा, हुँ, बच्चों को थोड़ा बुलिंग होता है कि यार ऑफ कोर्स। पहली बार आया है, राइट। हाँ। तो वो भी चैलेंजेस थी, बट उसमें तो माहिर था कि कोई बुलिंग कर नहीं सकता था। कोई टच नहीं कर सकता हाँ, भाई को। तो पर एटलीस्ट ये था कि चैलेंजेस ये थी कि यार पहली एग्जाम में गारंटीड फेल होना है। हुँ, तो इस चैलेंज लेके चलो, अभी फेल तो होना ही है, तभी कैसे करे कि पास हो जाए। तो पता ही है कि स्कूल में थोड़ी बहुत आगे पीछे देखने वाले, तो हफ्ते में इतना पता कर लिया कि सबसे टॉपर कौन है? टॉपर कौन है, और दोस्ती किससे बढ़वानी कौन, है? हाँ, कौन कर सकता है अपनी हेल्प, राइट। उसके बाद थोड़ा पता किया कि एग्जाम में आगे पीछे कौन आएगा, राइट। तो वो थोड़ा बहुत पता किया। तब उतना तो कर सकते थे कि यार तुझे हेल्प करनी है, वरना तू बाहर में देख लूंगा तुझे। तो ऐसे करके ऐसे करके 3 सब्जेक्ट में पास हो गया, विदाउट एनी, जीरो नॉलेज। ज़ीरो। तो ये था जुगाड़ के कुछ ना कुछ कर लेते थे। या बट आगे चैलेंजेस ज्यादा थे कि भाई भी साइंस में, एक तो पहले माइंड प्रिपेयर नहीं था कि साइंस करना भी है। हुँ, तो 11 तो जैसे जैसे पास हो ही जाता है, कोई फेल नहीं होता। 12th बहुत बड़ा चैलेंज था, बट एक इंटरेस्टिंग था मुझे कि मैथ्स अच्छा आता था, तो मैं लोगों को मैथ्स सिखाता था, और दूसरा दूसरे लड़कों के सीख लेता था कि मुझे ये तो सीखा, हुँ। मुझे पता नहीं चल रहा है। तो एक ऑलवेज ये अप्रोच था कि मेरा चैलेंज है ये, 12th में कुछ भी करके पास होना है। सो यू ऑलवेज़ सो आई थिंक इसमें से हम ये लिंक निकाल सकते हैं कि भई आपको ऑलवेज़ पता था कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, ठीक है ना? और आपकी जो वीकनेसेस थी उसके लिए आपने बोला कि भई नहीं आई नीड हेल्प तो आपने आउटसोर्स की वो चीज़ें। आई थिंक कि आजकल लोगों में ये चीज़ होती है कि भई उन्हें ये भी नहीं पता कि स्ट्रेंथ्स क्या हैं, वीकनेसेस क्या हैं, बस वो ऐसे ही बस जा रहे हैं, काट रहे हैं, यू नो व्हाट आई मीन? वो रीच आउट नहीं करते हेल्प के लिए, वेरी शाय और रीच आउट भी करें तो ऐसे लोग भी नहीं मिलते कि भाई आपको हेल्प कर ले। नहीं, लोग मिलते हैं, पर आप अपने वीकनेस, और स्पेशली गर्ल्स साइड में आपको, मैं रियली, लड़कियों में एक ज्यादा होता है कि आपकी जो वीकनेस है ना, आप लोगों को बोलते हैं नहीं। बच्चे बोल, जेंट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, मुझे नहीं आता है, क्या हुँ, फर्क पड़ता है, क्या फ़र्क पड़ता है? राइट। तो जब तक आप ओपन नहीं होते कि मुझे नहीं आता है, आपको कोई कैसे हेल्प करेगा, या या राइट। या तो ये चीज ऑलवेज कि भाई आपकी जो वीकनेस है वो लोगों को बताओ कि दिस इज माय वीकनेस, देन पीपल विल हेल्प यू आउट। या फिर आप सिंपल आप बोलो कि मुझे इंग्लिश नहीं आती। एग्जाम्पल, जब कनाडा में था, तो लोगों को ये यार इंग्लिश बोल नहीं सकता था, वो जो अंदर से होता है कि इंग्लिश नहीं आती, क्या करे। हुँ, तो यार छोड़ दो, सामने वाले की प्रॉब्लम है, आपको नहीं आती, उसको तो आती है। या तो एक चैलेंजेस होता। मैं जब कनाडा में 2006 में थ्रू आउट एमएससी बीएड किया, गुजराती लैंग्वेज थी, इंग्लिश वो लास्ट था कि इंग्लिश बोलना है, वो लास्ट ऑप्शन था कि इंग्लिश तो ऑप्शन ही नहीं था, अब इंग्लिश तब इंग्लिश बोलना। बोलना पड़ेगा। वो गुजरात में वो ऑप्शन था, यहाँ आए ऑप्शन ही नहीं है। हाँ, पहले ही दिन, दूसरे तीसरे दिन जीजा ने बोल दिया आपको सिन नंबर अप्लाई करने के लिए सर्विस कनाडा के ऑफिस में लाइन में खड़े रहना है। ओके, अभी लाइन में खड़े रह के वहां तक तो, काउंटर तक तो पहुंच गया, काउंटर पे जाके बोलू क्या। बोलूँ क्या? उतना भी कन्वर्जेशन नहीं आता था नहीं उस टाइम आता पे। या
कि मैं उनसे इतना बोल सकूं कि मुझे सीन नंबर अप्लाई करना है, हम्म, गिव मी फॉर्म आ गया तो फॉर्म फिलअप करने के लिए इंफॉर्मेशन में यस डालना है, नो डालना है, वो भी पता नहीं था। या क्योंकि क्वेश्चन समझ आए तो अब आप आंसर करोगे। राइट, पर मेरे ब्रदर इन ने बोला नहीं, जाके कर, ये सीखना पड़ेगा तुझे। राइट, या तो किसी ना किसी को ऑप्शन नहीं है, मैंने आगे भी बोला, ऑप्शन जब आपके पास नहीं होता ना, आप कर लाते हो, कर जाते हो कुछ भी। ऑप्शन नहीं था, ब्रदर इन साथ में आ जाते तो उन्होंने फॉर्म भर देना था। पर उन्होंने अच्छा किया कि मुझे अकेले भेजे। एक्चुअली उनकी जॉब आ गई थी तो उन्होंने मुझे अकेला भेज दिया, तू जाके देख, फॉर्म तो ले आ एटलीस्ट, फिर कर लेंगे। मैंने कहा आया हूँ, राइट, 2 बस चेंज करके इधर तक आया हुआ हूँ। उस टाइम पे $1 की वैल्यू था, टाइम्स उस टाइम पे 32 होते थे, तो एक मतलब 32 हुए, राइट, 32 2000। 32 इंडियन हाँ, रुपीस थे, हाँ जी। तो क्यों ये खराब करे, तो इधर का हेल्प लिया, इसका हेल्प लिया, फॉर्म फिलअप करके एप्लीकेशन करके आया उस टाइम पे। तो ब्रदर इन लॉ ने घर आके देखा कि तू करके आया, बोला हाँ। क्या फॉर्म किया, सब हो गया। तूने, उनको भी पता था कि कुछ पक्का जोल किया होगा तूने, कुछ तो बांड मारा राइट। होगा। हाँ, मेरा कोई बात नहीं, जब चलो रिजेक्ट होता है तेरा फॉर्म हाँ, तो दूसरी बार जाएंगे, मैं तेरे साथ आऊँगा। ठीक है जी। तो आ गया था, सीट नंबर सभी कुछ, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। पर यही है कि जब ऑप्शन नहीं है, आप कर जाते हो कुछ ना सर्वाइव कुछ। करना ही है, सही यस। है। सो आप कनाडा में नए-नए आए, जो पहला आपका स्ट्रगल था कि भाई इंग्लिश नहीं आती, यू गॉट ओवर दैट हम्प, ठीक है ना? एंड फास्ट फॉरवर्ड टू प्रेजेंट कि जब आपने यू अचीव सो मच प्रोफेशनली, पर्सनली, एंड यू आर ऑल्सो यू नो क्या बोलते हैं उसको, एक वर्ड है कि आप लोगों को जेलस भी बहुत करते हो, आपकी जो स्टोरीज आती है फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, कि आपने यहाँ पे घूम रहे हो, वहाँ पे घूम रहे हो, तो हमने हमने तो आपको ब्लॉक ही कर दिया हुआ है फेसबुक पे सारी जगहों पे। बट बट आई फील लाइक कि आजकल की जो जनरेशन है, दे नीड टू नो के, दे नो द राकेश पटेल कि भाई इज़ मल्टीपल बिजनेस ओनर, बट वी नीड टू शो देम कि भाई व्हाट इज़ योर डे लाइक, हाउ डू यू हसल, बिकॉज आज भी टुडे संडे और हम लोग यहाँ पे 6:30 को हम लोग आ गए थे, एंड 7:15 को हमने अपनी पॉडकास्ट शुरू कर दी थी उनके साथ। सो यू नो द फ्लैशी लाइफ दैट शोज ऑन सोशल मीडिया एंड एवरीवेयर एल्स, उसके पीछे भी एक स्ट्रगल होती है। सो वी वांट टू नो कि what is a everyday life of Rakesh Patel, what does it go through to have sustain a lifestyle that you have sustained, to be a community leader and to be a business, multiple business owners. डे टू डे लाइफ एज अ इज रियली चैलेंजिंग, कि जब आप मल्टीपल बिजनेस ओन करते हो, साथ में कम्युनिटी वर्क करते हो, फैमिली भी है, सबको बैलेंस रखना इज चैलेंज। बट थिंक जो आप कर रहे हो, जैसे मैं जो करता हूँ उस टाइम पे वही करता हूँ। आज मैं मेरे एक बिजनेस पे हूँ तो देन ओनली आई फोकस ऑन दैट। तो एक ये है। दूसरा, सुबह उठते ही 7 बजे उठ के 8 बजे से कॉल शुरू हो जाते हैं। कई दिन ऐसे तो वाइफ कंप्लेन करती है कि बात करने के लिए तुझे तेरे साथ अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। और होता है, उसको भी बोला हुआ है कि बिटवीन 8 to 5 अवॉइड टू कॉल मी अंटिल नेसेसरी, राइट। बट जानते हो ये होती है, क्या खाना खाया कि नहीं खाया, चलता रहता है। Right. पर होता है कि कई बार 5 कॉल के बाद उसको भी आंसर करने का मौका मिलता है। और सभी लोगों की कंप्लेन है कि फ़ोन तो उठाता ही नहीं है। पर जो बिजनेस की लाइफस्टाइल है कि आज हूँ मैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, ज़्यादातर हर बिजनेस में हर टाइम पे चैलेंज डिफरेंट होती है। Right. सो pretty much every day average my phone calls 300 to 400 calls a day. A day, wow. Yes. In Wow. and out I'm talking about. Wow. सो सभी को बात करना, मिनिमम जैसे कहाँ पे आप टाइम सेव कर सकते हो। जैसे मुझे पहले लगता था कि टाइम इज़ मोर इम्पोर्टेंट। मुझे भी पसंद आता है कि रील स्क्रॉल करते जाओ। तो एक दिन मैंने सोचा यार 1-1.5 घंटा तो मैंने रील स्क्रॉल करने में लगा दिया। तो उस दिन डिसाइड किया कि मंडे टू फ्राइडे नो मोर सोशल No social media, ठीक है। सो आज भी चैलेंज है कि मंडे मॉर्निंग को फेसबुक, इंस्टा अनइंस्टॉल हो जाता है फ़ोन में। Not delete. Not delete, uninstall. uninstall. ऐसा भी नहीं कि आपने मुझे कुछ भेज दिया, मैंने शुरू किया, वहां से भी फेसबुक ले ही लेता है कि ले कुछ लेता ना है। कुछ आप आ जाते हैं। तो कम्प्लीटली अनइंस्टॉल। Right. वीकेंड में टाइम है तो शुरू कर लेते हैं बाद में। Right. आज देखो लॉन्ग वीकेंड है, Right. लॉन्ग वीकेंड के संडे 7 बजे यहाँ पे हूँ।
तो ऐसा नहीं है टाइम नहीं है, हाँ, आपको कुछ करना है तो ऑलवेज अवेलेबल, एंड एज यू नो राइट right, right, right. व्हेन यू हैव एनी क्वेश्चन एनी ट्रबल आई एम ऑलवेज बी द फर्स्ट पर्सन Yeah, इज मी टू बी yeah, देयर राइट। yeah. तो मैं किसी को भी बोल सकता हूँ कि ऐसा नहीं कि मेरे पास टाइम नहीं है, आई नेवर से आई डोंट हैव अ टाइम, Mm, बट आई मेक द टाइम फॉर यू गाइस। of course, of So course. it's struggle life. Yeah. It's not easy. But when whatever day I'm in Edmonton, I just focus on my work. ठीक है. जब छुट्टी पे होता हूँ घूम रहा हूँ then I don't care about कि क्या हो रहा है एडमिंटन में। और छुट्टियों की बात करें तो आपकी तो लिस्ट बहुत ही लंबी है छुट्टियों की. और आई थिंक यू नो स्ट्रगल जो आप करते हो डे टू डे लाइफ में टू सस्टेन द बिजनेसेस एंड कम्युनिटी साइड ऑफ थिंग्स, उससे भी ये होता है कि जब मैं आप एक बार मुझे याद है मैंने राकेश भाई को मैंने फ़ोन किया था, दैट वाज थर्सडे, आई थिंक ट्यूसडे और थर्सडे था, दोपहर के 1-2 बजे थे. मैंने बोला राकेश भाई कहाँ पे हो? बोले हम लोग बैंफ में आई स्नो ट्यूबिंग कर रहे हैं. मैंने बोला भाई मंगलवार को यार, गुरुवार को कौन स्नो ट्यूबिंग करता है, वो भी दोपहर में. सो दैट्स द लाइफस्टाइल, दैट्स द साइड दैट यू गेट राइट, बिकॉज आपने इतना असर करते हो तो यू कैन एन्जॉय योर लाइफ, कि आपने इतना स्ट्रगल किया हुआ है तो यू कैन स्पॉइल योर सेल्फ. एंड दैट शुड बी ऑलवेज बी देयर, दैट बैलेंस शुड ऑलवेज बी देयर ना, कि भाई यू कैन ऑलवेज बी कि भाई नहीं काम काम काम, यू हैव टू हैव द फैमिली लाइफ एंड ऑल दैट राइट, एंड दैट्स व्हाट यू गेट राइट. एंड सो या that's great. What would you say was your lowest point in life? You know, some people say the rock bottom, कि यार यहाँ से तो मतलब अब तो ऊपर ही जाना पड़ेगा, यहाँ से नीचे गए तो फिर हम तो फिर गए. What was that? In I think 2011 और 12 जब वाइफ प्रेग्नेंट थी, उस टाइम पे मेरे कंस्ट्रक्शन करता था. फोर्ट मैकमरी के अच्छे प्रोजेक्ट थे मेरे पास. फोर्ट मैकमरी में अपार्टमेंट बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन चल रहा था, रिनोवेशन का. ऑलमोस्ट काम ख़त्म कर, लास्ट 1-2 दिन रहते ही काम ख़त्म हो रहा था. और वाइफ प्रेग्नेंट थी, ड्राइव कर रही थी, लो बीपी हो गया और उसकी गाड़ी डीच में चली गई राइट, एंथनी हंडे पे. तो शी कीप कॉलिंग मी, मे बी शी कॉल मी 10 times. उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं था, गाड़ी में बैठे बैठे ऑलरेडी डीच में है, गाड़ी से निकल नहीं सकती. And she's pregnant as well, Yeah. right? तो उसने मुझे कॉल किया, क्योंकि उस टाइम कवरेज नहीं था, मैं आई वाज ऑन द वे टू द फोर्ट मैकमरी, नो कवरेज. तो वो मुझे रीच नहीं कर पाई. दोस्तों को कॉल किया, किसी ने हेल्प किया, पुलिस कॉल कर ली, हॉस्पिटल में गई. उसके बाद ऑलमोस्ट आई रिप्लाइड हर आफ्टर 4 hours, कि मैंने जब देखा कि सर इतने सारे कॉल्स क्या हुआ राइट. तो उस टाइम पे मैं एक बड़ा प्रोजेक्ट लेके उसका इनिशियल फर्स्ट पेमेंट में का चेक लेके निकला था, डिपॉजिट मनी का. और मैंने देखा कि यार ये हुआ, फिर सब बात हुई, ये हो गया था, आपको मैं कॉल नहीं कर पाई. शी वॉज सो अपसेट कि वो शी कैन रीच मी आउट. तो उस टाइम में मुझे ऐसा लगा यार पैसे अकेले इम्पोर्टेंट नहीं है, जब आपकी फैमिली आपके बिना स्ट्रगल कर सकते हो, जब व्हेन यू नीड उसको चाहिए और मैं नहीं हूँ, देन तो फर्स्ट थिंग व्हाट आई डिसाइड किया, यार नो मोर फोर्ट मैकमरी एंड आई विल वर्क इन एडमिंटन. सो मैंने वो पैसे का ड्राफ्ट रिटर्न कर दिया उसको. वो बोला सर भाई यार लोग इसके पीछे लाइन में खड़े हैं और तो मुझे पैसे. मैंने कहा दिस इज अ स्टोरी एंड आई डोंट वांट टू से Yeah, एनीथिंग एल्स, बट सॉरी आई कैंट डू इट. yeah. So your priorities are very, very straightforward, कि यार family comes first no matter what. नो मैटर ठीक है ना, work and work, and I think that's how it should be. A lot of people, what ends up happening is कि पैसों के पीछे वो बोलते हैं ना, कितना पागल हो जाते हैं कि भाई they don't look after themselves. ठीक है ना, health wise they don't look after themselves, and they don't look after their family. And so I mean that's always a struggle as a businessman, and I know I have that struggle as well. दूसरा उसके बाद जब आप चैलेंज करते हो ना कोई चीज को, जैसे मेरी कंपनी का नाम आपको बताया ATS ऑल ट्रेड सर्विसेज एडमिंटन. उसका एक पर्पस है कि मुझे काम एडमिंटन में करना है. Right. आई डोंट वांट टू गो. ठीक है. So you've it's like a silent message कि भाई एडमिंटन लिखा हुआ है भाई, तू मुझे अगर फोर्ट मैक से कॉल कर रहा है तो मैं तेरी फोन उठाऊंगा भी नहीं. एग्जैक्टली. सो ये मैंने जब डिसाइड किया तब से वो कंपनी का नाम के पीछे मैंने एडमिंटन लगाया था. वो पर्पस था Right. कि मुझे भी हर रोज याद करवाता है कि दैट्स फैमिली फर्स्ट. आई That's the डोंट goal. वांट टू गो Right. राइट विदाउट फैमिली समवेयर एल्स. Right. So over the years, from your rock bottom to now, that's almost what, 12-13 years ago, right? 2011 you said, right? Yes. So over the years, what does success mean to you? Like, how has the definition of success changed? And one more thing I want to add on the personal side is कि कभी कभी पता क्या होता है कि you have a lot of friends,
from your previous, I won't say previous life, but your previous hustle, कि जो आपकी जॉब होती है, कि आपका इनिशियल जो बिजनेस का जो होता है, इट्स अ स्ट्रगल, ठीक है ना, यू आर स्टिल नॉट देयर, ठीक है ना. सो फ्रॉम दो लाइक दोज फ्रेंड्स एंड द फ्रेंड्स राइट नाउ, how has that changed, how has that evolved? Because कभी कभी क्या होता है कि a lot of friends they part ways, कि भाई यार ये बंदा तो जरा निकल गया है, वो कुछ और ही उसके है aspirations हैं, ये है वो है. And there's also always there's also people कि they want to leech on to you, कि ओ राकेश भाई तू तो यार बहुत बड़ा हॉट शॉट है यार, आई वांट टू बी फ्रेंड्स विथ यू, कि यू नो लेट्स कुछ करते हैं यार, तू आजा मेरे घर पे, ये करते हैं वो करते हैं. There's always like that. So how has success changed, one, and what sort of a people, like how do you judge people, like have you, I'm sure you're a good judger of people by now because you meet a lot of people, so yeah. सो सिंपल, फ्रेंड्स एडमिंटन में ही जो आके नए फ्रेंड्स बने हुए हैं, सो सिंस डे वन जो फ्रेंड थे आज भी वो फ्रेंड है. बट लोग होता है ना कि भी जब आप सक्सेस में होते हो तो आप फ्रेंड भी आपको पीछे छोड़ देता है, आप भी फ्रेंड को पीछे छोड़ देते हो, दोनों चीज़ होती है. बट मेरी लाइफ में ऐसा नहीं हुआ कि जो मेरे साथ डे वन से थे आज भी है. जैसे आपके डैड भी है, डे वन से जानता हूँ, सिंस वी स्टार्ट जर्नी 2006 लिविंग Yeah. द सेम अपार्टमेंट बिल्डिंग Yeah. टिल टुडे. Yeah. डजेंट मैटर हाउ आई एम डूइंग, राइट. तो मेरा ऑलवेज ये अप्रोच रहा है कि बिजनेस करना है. तो मेरे कई फ्रेंड्स आप भी जानते हो कि जो $2 लाख की जॉब करने वालों को मैंने जॉब छुड़वा के बिजनेस में लाया हूँ, जो पहले साल की उसकी इनकम 30-40,000 थी. बट आई स्टिक विद देम, से बी विथ मी, आई विल टेक यू ऑन द नेक्स्ट लेवल, गारंटीड. Right. तो ऐसे फ्रेंड है, आज मेरे पार्टनर भी है. पर मैं ये भी देखता हूँ कि जब कोई बंदा स्ट्रगल करना चाहता है, मेरे साथ आना चाहता है, बहुत लोग ट्राई कर रहे हैं पर आना चाहता है, तो उसका भी कितना पैशनेट है आने के लिए, राइट. कुछ करना चाहता है. एग्जाम्पल, व्हेन यू टोल्ड मी आई वांट टू बी विथ यू और डू द बिजनेस, देन आई सेड ओके, नंबर वन, क्विट जॉब एंड आई विल टेक केयर ऑफ योर फैमिली, राइट. Yeah. 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 सो क्विट द जॉब बहुत आज के दिन में 99.95% को आप बोलो कि बिजनेस करना है, सबको करना है, पर बोलो जॉब छोड़ो, नहीं छोड़ सकता. Yeah. Yeah. तो आपके पास जब दो ऑप्शन है तो आप वो नहीं कर पाओगे जो यू वांट टू बी. Yeah, yeah. And I think when I reached out to you, I think that was also my rock bottom. And a part of the reason why कि हम लोग इतना close भी आ गए, like me especially with Rakesh bhai, I think is because of that low time that I had in my life. Because मेरी job थी तब को मैं, I was in Cold Lake at that time, और I used to work for the Canadian Armed Forces, right? So लोग बोलते हैं कि यार तेरी इतनी अच्छी जॉब है, तू गवर्नमेंट में जॉब कर रहा है, लोगों की ड्रीम है ये जॉब करना, राइट. But only I think it's only you know what you are going through, because my wife was pregnant with her first baby at that time, so the long distance was going on. मैं कोल्ड लेक में था, वो यहाँ पे थी, and lot of things going on and stuff. So I reached out to you. I was like, you know what, राकेश भाई यार कुछ तो करना पड़ेगा. अब तो मतलब यहाँ से नीचे नहीं जा सकते, यहाँ से तो वही ऊपर ही उठना है. And you said quit the job, all we'll take care of it. And I was like, you know what यार, अगर कोई बंदा है मेरे पास and I have the liberty of having the experience of Rakesh bhai, and if he is taking me कि भाई चल, I'm your backup, I'll take care of everything. So I said, you know what, it's a no-brainer, I'll take on, right. And मैंने always ये चीज़ पढ़ी हुई है कि the reason why I'm also in a lot of businesses, like you said, कि we are also partner in one or two business, कि I want to do more and more things, because I feel like when I'm sitting with my friends or my family when I'm 60 or 65 and we're chilling, I want कि यार एक टाइम पे पता है मैं ये भी कर रहा था, एक टाइम में मैं रेस्टोरेंट बिजनेस में भी था, how silly I was कि I got into restaurant business or anything like that, you know what I mean. And I think I want more and more experience, because why not यार, you only live once. And I think that's the problem with the people कि यार they get into so much comfort zone early on in life कि यार नहीं यार, मतलब मैं प्रोजेक्ट मैनेजर मैं हूँ, मैं बैठा हुआ हूँ, वाइफ की भी जॉब है, बच्चे हैं, सेट हैं, इट्स ओके, वी आर रिलैक्सिंग, राइट. दे डोंट गो आउट, एंड आई एम नॉट सेइंग एवरीवन इज मेड आउट फॉर बिजनेस, ठीक है ना, बट आई एम श्योर कि एवरीवन हैज़ अ पैशन, ठीक है ना, बट दे नेवर वांट टू एक्सप्लोर दैट पैशन बिकॉज दे आर सो होल्डिंग बैक. तो that's what it is, right? I think yeah. और सबके बस की बात भी नहीं है, कर भी नहीं सकते. और आप जब बिजनेस कर रहे हो तो आपका फैमिली बैकअप इज
मोस्ट इम्पोर्टेंट। यस मुझे कई लोग पूछते हैं कि यार आप अपनी लाइफ बैलेंस कैसे करते हो कि इतने बड़े एसोसिएशन में साल के 80 प्रोग्राम है, अपने एसोसिएशन 88 प्रोग्राम से, वाओ या 88 प्रोग्राम में से ऑलमोस्ट 50 प्रोग्राम में आपके प्रेजेंट, प्रेजेंस होनी उसके चाहिए पीछे का टाइम देना, तो एक ऑलमोस्ट फुल टाइम एक एसोसिएशन रन करना, ऑलमोस्ट फुल टाइम वर्क। उसके साथ फैमिली भी है, 2 बच्चे भी है, वो भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि डैड आपके साथ खेलना है। उसके या साथ इतने बिजनेस भी रन करना, तो एक सबको बैलेंस रखना, उसके लिए फैमिली सपोर्ट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। विदाउट फैमिली सपोर्ट ये हो ही नहीं सकता, स्पेशली जब आप पेरेंट्स के साथ रहे तो उनके भी डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट है, एवरीथिंग। एंड आई एम रियली happy, or most in my life I have really understandable wife. She always with me no matter what, I'm up or down, anything happens, how hard my day it is, when I reach home, on her one smile make my या day happy again. Yeah, and I think it's very important. I think a lot of people see कि भाई ओ राकेश भाई ने तो फाड़ दिया यार, उनके इतने business है, all credits to him. I think the credit, yeah, all credits to you, but the biggest and major thing is how your family support is. ठीक है ना? मैं ये चीज़ मानता हूँ कि अगर and nothing against the people who have things going on in their life, in their personal life, आई फील लाइक कि जब आप बाहर निकलते हो सुबह, जब आप 8 बजे बाहर निकलते हो, तो इट फील्स लाइक यू आर गोइंग टू वॉर। वी आर ऑल गोइंग टू वॉर एवरी सिंगल डे इन द मॉर्निंग, ठीक है ना? हम जंग पे जाते हैं, ठीक है ना? वी ऑलवेज हैव आवर गार्ड्स अप, वी ऑलवेज वांट टू मेक श्योर कि भाई आवर बिजनेस, आवर कम्युनिटी, आवर ओन पर्सनल सेल्फ, नो वन ब्रीचेस दैट बाउंड्री, ठीक है ना? तो हम जब घर पे जाते हैं तो दैट वो जो घर जो होता है, दैट हैज़ टू बी द सेफ प्लेस कि भाई मैं घर पे आया हूँ, मेरे आर्मर्स मैंने उतार दिए, दिस इज़ द प्लेस आई वांट टू बी लाइक कि चलो भाई नो हेडेक, नो हैसल, रिलैक्स, एन्जॉय द टाइम, 2 रोटी खाओ, बीवी बच्चे के साथ टीवी देखो और कॉल इट अ नाइट, राइट? एंड दैट्स हाउ इट्स सपोज टू बी, एंड आई थिंक दैट इज़, वो है तो ये सारा कुछ है। Exactly. अगर वो ही नहीं है तो ये कुछ भी नहीं होगा। उनके लिए तो है, राइट? आप Exactly. कर किसके लिए रहे, राइट? एग्जैक्टली आज के एग्जैक्टली दिन में कुछ भी ना करो तो अपनी लाइफ बिंदास निकल जाएगी, कोई टेंशन नहीं है। Yeah. बट कुछ चाहिए कि आप कुछ करके कम्युनिटी को, टाइम है कम्युनिटी को दो, टाइम राइट दो, राइट डोनेशन करो, राइट कुछ भी करके कम्युनिटी को हेल्प करो। या आज आपको कहीं ना कहीं से हेल्प मिलती है तो आपकी ड्यूटी है, जब आप कर सकते हो, पोजीशन पे हो, तो हेल्प अदर्स एंड Right. ग्रो टुगेदर, सिंपल। आप साथ में नहीं, आपकी माइंडसेट ये नहीं है कि आप सबको लेके साथ नहीं चल सकते, अकेले ऑलवेज आप फर्स्ट भी होते हो, आप लास्ट भी होते हो। अपना आपका देखने का नजरिया क्या है? तो जब ग्रुप में साथ में लेके चलो, फर्स्ट क्लास की बारी नहीं, हम साथ में चल रहे हैं, राइट? तो वो एक पॉजिटिव न्यूज भी देता है, जब आप डाउन टाइम है उसमें भी हेल्प होता है, तो विच इज गुड पॉइंट, राइट? सो जब आप अपने गोल्स चेज नहीं करते तो आप अपने सोल के लिए, लाइक यू नो, देयर इज ऑलवेज पीपल के चलो पूरे दिन तो अपने गोल चेज कर लिया अपना, ठीक है ना? फिर शाम को आपने अपनी फैमिली के साथ टाइम भी स्पेंड किया, बट दैट्स विद फैमिली। व्हाट डू यू डू फॉर योर ओन सेल्फ, कि अपने आप के लिए एनी हॉबी, एनी पैशन, कि भाई मुझे यार अपने लिए टाइम, दिस इज मी टाइम। फॉर मी इट्स गोइंग एंड प्ले राउंड ऑफ गोल्फ, ठीक है ना? आई गो प्ले गोल्फ, ठीक है? आई वेक अप इन द मॉर्निंग couple hours earlier than my family does, so I do yoga, I do meditation, things like that, you know, because I think it's always so necessary to know कि भाई inner self ये सही है, अगर ये सही होगा तो सारा कुछ सही होगा, ठीक है ना? So for what do you do, like what is your activity or what is your routine, कि आपके रूटीन में क्या है, कोई चीज़ है, या every weekend कुछ करते हो आप, कि every so few days आप कुछ करते हो? खुद के लिए करता हूँ, पर ऐसा है कि फैमिली जब साथ में है, वो इम्पोर्टेंट ही फैमिली के। जब टाइम है, आपने देखा होगा मैं घूम फिर रहा हूँ, फिर भी फैमिली होती है, फ्रेंड्स होते हैं। कभी मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है मैं अकेले जाके कहीं पे चिल करूँ, Right 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 दिस इज नॉट इन लाइक माई, हर एक का अपना अपना होता है। पर मुझे ये कि फैमिली साथ में, बच्चे साथ में, बीवी साथ में है, that's it इनकेस नहीं है तो दोस्त साथ में है, दोस्तों के साथ जाके बैठो। ठीक तो आई एम मोर सोशल पर्सन, मुझे ठीक है। कुछ कोई ना कोई आसपास में चाहिए, अकेला ऐसा कुछ नहीं कर सकता हूँ। हाँ, यह सॉन्ग सुनना पसंद करता हूँ, तो जैसे गाड़ी में ड्राइव कर रहा हूँ तो मोस्टली मैं जब सॉन्ग प्ले करता हूँ, वॉल्यूम इज हाईएस्ट है। पर आपने मुझे कभी नहीं सुना होगा मैं किसी के साथ हूँ, इवन मैंने टिप ऑन भी किया हुआ है। right 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 क्योंकि जब कोई साथ में है तो बातें उनके साथ ही करनी है। फिर मुझे कोई म्यूजिक या
टीवी देखने की जरूरत नहीं। आप आई कैन से लाइक लास्ट 6 month I didn't turn on my didn't turn on my TV myself, not even single day. मेरे बेडरूम का टीवी ऑन ही नहीं हुआ। मैंने इंडिया गया था तब अनप्लग किया था। आप जनवरी में रिटर्न आया। आई डिडंट प्लग इट इन। I have no time to watch TV. When we have beautiful wife with you, why you That's great. That's great. But you know sometimes, so you're saying कि you're not a person कि you always want to be surrounded by कि भाई फ्रेंड्स फैमिली, और अगर फ्रेंड्स फैमिली नहीं है तो अलोन टाइम में म्यूजिक, ठीक है ना. सो यू नो अ लॉट ऑफ पीपल लाइक फॉर एग्जांपल मी, आई लाइक अ क्वाइट टाइम कि भाई 2-3 मिनट भी मिल जाए कि भाई ओके क्वाइट टाइम, आई लाइक टू इंट्रोस्पेक्ट कि भाई you know it always I need that to kind of balance out my life कि भाई आज for example from Monday to Friday I take in the afternoon I take at least 10-15 minutes to myself कि भाई turn off everything and be like okay are we meeting the goal, ये मेरा गोल था आज का, what are we doing, ठीक है ना. I'm always introspecting कि okay let's are we on point कि there's a short term goal, there's a long term goal. So do you do any exercise like that or नॉट रियली, क्योंकि मेरा गोल का फोकस एवरी डे एवरी मिनट एवरी सेकंड होता है okay कि मुझे ये करना है और मैं वो कर ही रहा हूँ। right आई नेवर हैव टू थिंक अबाउट इट व्हाट आई एम डूइंग। okay अनदर आई मिस दैट वन क्वेश्चन यू आस्क मी के आपके गोल, आपका जो रिजल्ट आता पॉजिटिव नहीं आता नेगेटिव आता है, व्हाट यू डू। मैं कभी भी ये नहीं सोचता कि मैं यही देखता हूँ कि मैंने ट्राई हार्ड किया हुआ है, आई डिड माई बेस्ट, गिव माई बेस्ट, आई डोंट केयर अबाउट द रिजल्ट। और वो रिजल्ट अभी नहीं आएगा, बाद में आएगा। टीच मी समथिंग। right फेलियर से भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है एंड दैट्स व्हाट आई लर्न फ्रॉम दैट। आप पढ़ते हो, आप बुक किताबें पढ़ते हो कि मूवीज ज़्यादा इंस्पायर करती है आपको, किताबें या कोई लाइन या कोई कोट जिसने आपको इंस्पायर किया हो? नहीं, किताब पढ़नी चाहिए, मानता भी हूँ, 100% एग्री भी हूँ, पर पढ़ नहीं पा रहा हूँ। कोई बात नहीं। बोरिंग नींद आ जाती है, पर होता है शुरू में ऐसा। पर एक रिच डैड पुअर डैड करके जो बुक है, राइट मैंने भी वो पढ़ी है, मैंने पढ़ी भी है और ऑडियो भी लिसन किए हुए उसमें। ऑडियो बुक पढ़ी है हाँ। आपने, ठीक है जी. तो उसमें एक चीज जो मुझे लाइफ में मुझे टच भी कर गई है और वो जो मानता भी हूँ कि अकेली वो इम्पोर्टेंट नहीं कि आपके पास पैसे हो, पर पैसे के साथ आपके पास एजुकेशन भी होना चाहिए, राइट नॉलेज भी होना चाहिए। अकेला पैसा सब कुछ नहीं दे सकता, राइट तो पैसे के साथ नॉलेज हो। और दूसरी बात उसी बुक में है कि आपके पास पैसे, उसका भी यूज कैसे करते हो, राइट। लायबिलिटी कम से कम रखो। और दैट्स व्हाट आई बिलीव के शोकेस लोगों को मानना है कि यार थोड़े बहुत पैसे बना लिए, यार मैं इतनी बड़ी गाड़ी लेके घूम रहा हूँ, इतनी गाड़ी अच्छी होनी चाहिए, उसके पीछे लायबिलिटी भी अच्छी है, इंश्योरेंस भी ज़्यादा है, एक्सपेंस भी ज़्यादा है, सभी कुछ। तो वो चीज़ें कब करनी चाहिए, ये मेरे दृष्टिकोण से ये होना चाहिए कि जब आप गोल आपके सभी पूरे हो रहे हैं, आपके पास इतने पैसे है कि वो जो आपके ड्रीम है वो विदाउट एनी लोन आप ला सकते हो। कि आज अच्छी गाड़ी चलानी है तो मेरे पास इतने पैसे कि विदाउट लोन इतने कैश पड़ा हुआ है बैंक में, मैंने बाई कर ली, तब मैं उसके ऊपर एंजॉय भी कर सकता हूँ। मुझे वो लाने के बाद लोड नहीं होना चाहिए कि चलो इसका मॉर्गेज पेमेंट भी इतना आता है, उसका इंश्योरेंस भी इतना हाई है। तो दैट इज अ रियल एंजॉयमेंट इन माई लाइफ कि भाई करना है तो वो लेवल तक पहुंच जाओ, उसके बाद अपने शौक पूरे करो। ऐसा नहीं है, शौक पूरे करने चाहिए पर खुद को स्ट्रेच नहीं करना चाहिए वो टाइम। राइट. So that brings me to a next question, a very interesting question. Is money everything? नो, Okay. नॉट एट ऑल, मनी इज नॉट एवरीथिंग। Right. Because और आप जो बोल रहे हो कि भाई मनी इज़ नॉट एवरीथिंग, बट आई मीन ऑब्वियसली आपके पास तो बहुत है बट वो मनी जो आप जो बता रहे हो कि आपके गोल्स भी हो गए, आपके जो ड्रीम कार भी आ गई, उसके बाद आई नो बट आई वांट टू हियर फ्रॉम यू कि व्हाट डू यू डू फॉर द कम्युनिटी कि आप, आई नो यू आर बिग चैम्पियन ऑफ गिविंग इट बैक कि भाई मैंने कमा लिया, मेरे पास जितना पोर्शन था मेरे पास सही है, एक्सेस पैसा बढ़ा हुआ है, द पीपल हु आर लेस फॉर्चुनेट, ठीक है ना, ये नॉट एवरीवन इज फॉर्चुनेट इन लाइफ, ठीक है ना, वो यहाँ पे हो, इंडिया में हो, कहीं पे भी हो. सो डू यू डू एनी सेवा लाइक लाइक कम्युनिटी गिविंग बैक? Yeah, I do. Especially like serving in Edmonton, I'm serving like a association and involved with many other organization where I give my time
wherever possible my money as well as a sponsorship. Pretty much each and every temple, whenever they have any issue or any they need donation, they come to me, never say no, no matter what, where they come from. एंड कम्युनिटी के लिए टाइम दे रहे हैं, वहाँ पे भी स्पॉन्सरशिप कर रहे हैं, तो एक अंदर से मुझे आनंद आता है कि आज मैंने कोई इवेंट किया, वो इवेंट अच्छा रहा से ज़्यादा ये है कि लोगों ने कितना एंजॉय किया, और उससे जो खुशी जो मिलती है अंदर से, तो वो खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता. हम लास्ट ईयर का ही बात करते हैं, हमने आउटडोर डांडिया करने का प्लान किया था. तो बहुत सारे चैलेंजेस थे. पहले ऑर्गेनाइजेशन में मेजॉरिटी लोग बोल रहे थे नहीं, अल्बर्टा का वेदर ऐसा है कि अब कोई ठिकाना नहीं होता, क्यों इतना चैलेंज लेना. मैंने कहा डोंट वरी, देखी जाएगी. तो इवेंट तो ऑर्गेनाइज कर दिया. उस टाइम पे थोड़े डर की वजह से दो ऑप्शन रखे थे, इंडोर बुकिंग भी था और आउटडोर बुकिंग भी था. तो इंडोर बुकिंग हफ्ते पहले हमें कैंसिल करना पड़े ऐसा था. वेदर में भी रेन दिख रहा था, पर उस टाइम पे चैलेंज लिया, चला जो होगा देखा जाएगा. करना है तो इंडिया का माहौल लाना है, कि इंडिया में जो हम डांडिया करते हैं તો ગરબા એવા થવા જોઈએ કે ઇન્ડિયા લાગવું જોઈએ કે ઇન્ડિયામાં જ આપણે કરીએ છીએ. બરાબર છે. તો એ કરવા માટે ચેલેન્જ લીધી. સેમ થિંગ હેપન. સેમ ડે ધ દાંડિયા વોઝ ઇઝ શોઈંગ રેન, ટેમ્પરેચર વોઝ કોલ્ડ. Everybody say, let's cancel. I said, no, no matter what, if that happens for 1 hour, it's still good. I want to make people feel like we can do it. If India's people can do Garba outdoor, why not we can do it? तो हमने किया. 2 घंटे इतना लोगों ने एंजॉय किया. 2 घंटे बाद इतनी बारिश हुई कि उसके बाद प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ा. पर 2 घंटे जो किया, इतना पॉजिटिव रिजल्ट मिला कि आज ये साल में हम दो बार ही कर रहे हैं. एंड आज वो फियर नहीं है कि क्या होगा. और बच्चों ने बारिश में डांडिया खेला है, बारिश में गरबा किया है. Yeah, yeah. એનાથી મોટું કોઈ હોઈ જ ના શકે. That's make me more feel proud myself and give me positive energy. Right. Yeah. Like ગરબાનો જે ઇવેન્ટ હતો લાસ્ટ યર, એ કેવું હતું કે ભાઈ that was the first time કે આપણે જે આટલા મોટા લેવલ પર ગરબા થયા એડમન્ટનમાં સ્પેશિયલી, because એડમન્ટનનું વેધર એવું કહે છે કે ઇટ્સ મોર ઓફ ધ હાર્શેસ્ટ વેધર્સ, રાઈટ. અને યુ કેન નેવર ટ્રસ્ટ કે આજે રેન બતાવતું હોય તો રેન પડશે, મે બી રેન ના બી પડે, સન બી આવી જાય, સન હોય તો રેન બી આવી જાય, રાઈટ. સો what you guys did at GGA, like that was commendable. Like it was something out of the ordinary. અને આ વર્ષે 2 દિવસ છે તો આમ હું તો સુપર એક્સાઇટેડ છું એ વસ્તુ માટે. Yeah. People are drive crazy for that. Yeah, everybody, every single person. एक भी बंदा ने ऐसा नहीं बोला कि यार बारिश हो गई, ये हो गया. वो बोल रहे जितना किया हमने, जो खुल के एंजॉय किया हुआ है. Yeah. और उसमें भी एक जो माहौल था 1 सेकंड के लिए, कि जो तकरीबन बजे थे 8:20 7:25 हुई थी, और जब लाइट्स टर्न ऑन हुई, હા, थोड़ा हल्का सा डार्क हो गया तो लाइट, और जो एक माहौल बना था 1 माहौल बना सेकंड था. के लिए, दैट्स अनबिलीवेबल. yeah. So apart from community involvement, I know 2025 राकेश भाई और उनकी फैमिली के लिए it's been a great year because उन्होंने travel भी बहुत किया आपने. So you've done a lot of extensive traveling, ठीक है ना? So what are your favorite destinations so far that you've covered? What are the favorite destinations, locations? लोकेशंस बहुत अच्छे, सभी अच्छे. लोकेशन से ज़्यादा जब आपके साथ कौन है, आपने कौन से लोकेशन पे सबसे ज़्यादा एंजॉय किया, Yeah, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट देन कि लोकेशन कौन. लोकेशन तो अच्छा है, आप अच्छे पैसे खर्च वगैरह. करते हो. हवाई जाओ, हवाई भी बहुत अच्छा है. right, मेक्सिको जाओ, एनीवेयर इन द वर्ल्ड. right. बट इम्पोर्टेंट है कि आप सबसे अच्छा, तो मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि हमने सबसे अच्छा टाइम एंजॉय कहाँ किया था. तो जब मैं शादी करने यहाँ से इंडिया गया था 2008 में, तो उस टाइम पे ऐसा था कि दोस्त होते हैं, 2006 में आया था, तो दोस्त एक्सपेक्ट कर रहे कि कुछ राकेश इंडिया कनाडा से आ रहा है तो कुछ लेके आएगा. तो अभी दोस्त भी इतने सारे थे, तो किसके लिए क्या ले जाओ. तो मैंने पहले ही सबको बोल दिया, यार कुछ ला नहीं सकता, फैमिली भी बड़ी है, उनका टेक केयर करना है, बट आई टेक यू फॉर द टूर. ठीक है. कि डेफिनेटली हम जाएंगे, कहीं घूमने जाएंगे, एंड आई टेक केयर ऑफ ऑल द कॉस्ट, डोंट वरी अबाउट इट. सो वो टाइम हुआ, शादी का माहौल था, टाइम सेट ही नहीं हुआ.
उसके बाद हमने डिसाइड किया जिस दिन शादी हुई दूसरे दिन सुबह उठ के हम सभी दोस्त तकरीबन 25 लोग नेक्स्ट डे लोग हनीमून में जाते हैं, मैं 25 दोस्तों के और उनकी फैमिली मतलब वाइफ भी थी, सभी लोग हमने घूमने चले गए आबू और ठीक है। वहां पे 4 दिन रहे थे। तो बेसिकली हनीमून मेरा आबू में हुआ, पर ऐसा था कि 25 लोग साथ में थे राइट और वो टाइम हमने जो एंजॉय किया था कि रियल सब कुछ भुला के। राइट और आज भी मेरे दोस्त ये चीज याद करते कि यार जो Yeah. वो ट्रिप हुई थी इट्स नेवर हैपन इन अगेन। राइट और आज तब से ऑलमोस्ट एवरी ईयर इंडिया जाता हूँ, हाँ। एक भी साल ऐसा नहीं हुआ कि इंडिया गए और दोस्तों के साथ अपना ट्रिप नहीं हुआ। ट्रिप नहीं हुआ। हाँ, चाहे बड़ा ट्रिप लंबा ट्रिप हुआ ना हो, डिफरेंट डजंट मैटर, ठीक है। बट ट्रिप होता है। जब फैमिली साथ होती है तो विद ठीक है। फैमिली ट्रिप होता है, ठीक जब अकेले जाते हैं तो अकेले ट्रिप होता है। अभी भी गए थे, गोवा भी जाके आए हैं, ठीक है। बैंकॉक जाके आए, हर जगह पे जाते हैं। So what is your idea, like what is your location like or destination that you want to go, like आपके जो विश लिस्ट में सबसे टॉप पे जो है कि यार यहाँ पे तो एक बार तो जाना है यार, ये चला जाओ ना वहाँ पे मज़ा आ जाएगी, regardless of who you go with, what is that location? वो अभी जो एक ट्रिप में जो आगे प्लान कर रहा हूँ और मुझे जाना है जापान के चेरी ब्लॉसम में। Oh wow, चेरी that's ब्लॉसम beautiful. सीजन इन जापान, Yes. दैट इज व्हाट आई वांट टू गो नाउ। Okay. So that's what I am like next, and it will be happen next year. Next year. Okay. हमें भी जरा पूछ लेना जी, हम भी जरा आ जाएंगे, जरा कुछ दो पैसे जोड़ के हम भी आ जाएंगे। नहीं, जाना तो बहुत जगह पे है। हाँ। अभी नेक्स्ट ट्रिप कर रहे हैं अफ्रीका की, राइट? ओके हाँ, ठीक है मेरा जी। दोस्त है यहाँ के, अफ्रीका से ही है वो। हाँ तो ठीक है। वो बोल रहा है जाएंगे, तो दैट्स व्हाट आई थिंक नेक्स्ट ट्रिप वी आर प्लानिंग फॉर दैट। गुड गुड गुड। और इंडिया तो होता ही रहता है। इंडिया तो मतलब उसके लिए तो पास ही निकाल देना पड़ेगा। मेरे पापा मम्मी भी अब एवरी ईयर 2 बार जाते हैं, हर साल में 2 बार जाते हैं, ठीक है ना। आई थिंक इंडिया इज़ एन इमोशन। आई वुड से कि इंडिया इज़ नॉट अ प्लेस फॉर मी, ठीक है ना, बिकॉज मैंने भी मेक श्योर किया हुआ है कि मैंने और मेरी वाइफ ने ये लाइक वी हैव अ डील कि भाई एवरी 2 ईयर्स हम लोग इंडिया जाना है हमने। और अब तो क्या हो गया कि बच्चे हैं स्पेशली, तो बच्चों को तो लेके जाना ही है कि भाई वो तो कैनेडियन वेज तो सीख जाएंगे और वो तो वी विल मेक श्योर कि वो कैनेडियन वेज सीखें, बट जो इंडिया में उनके जो रूट्स हैं दे शुड नॉट बी डिप्राइव्ड ऑफ दैट, कि उनको वो चीज़ पता होनी चाहिए कि हम लोग कहाँ से आते हैं, हमारी लैंग्वेज क्या है, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है, राइट। सो राकेश भाई, वी वांट टू रैप इट अप विथ आई नो आपने एक स्टोरी मुझे बताई थी, और दिस इज़ गोइंग बैक टू गिविंग बैक टू द कम्युनिटी एंड गिविंग बैक लाइक जो आप देते हो ना, कि आपने मुझे एक बार बोला था कि आप जब पैसे देते हो किसी को तो वो मल्टीप्लाई होके आपके लिए आते हैं, ठीक है ना। और आपने मुझे एक स्टोरी बताई थी, आपको पता नहीं आपको याद है कि नहीं वो स्टोरी, कि जब आप इंडिया गए थे, आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट था और आपने इंडिया में जाके आपने किसी को डोनेशन किया था बस के लिए, आई थिंक कुछ था, राइट। वो स्टोरी ज़रा बता दो और जस्ट रैप इट अप कि भाई हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ कि पैसे तो आपने कमा लिए, लोग भी आपने कमा लिए, बट वो पैसे क्या यूज़ कहाँ पे किस तरह से करना चाहिए और कैसे वो पैसे वापस आते हैं आपके पास। तो बेसिकली वो स्टोरी आपको बताई थी, पर उसमें था ये कि जब मैं इंडिया में गया मेरी स्कूल में विजिट करने एवरी ईयर जब जाता हूँ तो स्कूल में टीचर्स को मिलता हूँ, हाय हेलो करते। तो उस दिन जाना ही था, रिटर्न आना था, टाइम नहीं मिला, तो लास्ट डे स्कूल में गया था। स्कूल में बोला टीचर ने कि यार कुछ डोनेशन चाहिए, हम स्कूल पेंट करवा रहे हैं और हम बस लाने वाले हैं। तो मैंने वो डोनेशन बोला, अभी टीचर ने बोला ना भी नहीं बोल सकता। मैंने कहा ठीक है, कितना चाहिए? तो थोड़ा उन्होंने अनएक्सपेक्टेड अमाउंट बोल दी कि यार थोड़ा ज़्यादा ही बोल दिया कि इतना चाहिए। मैंने कहा ओके चलो, अभी कमिट कर दिया कि चलो जो भी community होगा के लिए दे देंगे, हाँ देखा जाएगा। देखा जाएगा। मैंने कहा ठीक है, नो वरी। तो मैं ऑलवेज बिलीव करता हूँ कि जो आप करते हो वो रिटर्न आता ही है और कई गुना होके आता है। तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में हूँ, निकल ही रहा था, कॉल आ गया वहाँ से कि यार हमारी रेस्टोरेंट पेंट करनी है। तो मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। तो मैंने पेंटर को कॉल किया, पेंटर को बोला ये स्क्वायर फुट रेस्टोरेंट है, इतनी इतनी डिटेल है, क्या चार्ज करोगे बोलो। पेंटर ने बोला दिस एक्स अमाउंट। मैंने आगे कस्टमर को बोल दिया दिस इज द अमाउंट वी गोइंग टू चार्ज फॉर ऑल द ओवरहेड एंड ओवरहेड। सो देन व्हाट हैपन के जो ओनर था उसने कंफर्म भी कर दिया जॉब राइट अवे। अभी मैं ड्यूरिंग द ट्रैवलिंग में हूँ, पेंटर जाके काम शुरू करने वाला था, पर वो पेंटर ने किया नहीं। फिर मैंने दूसरे पेंटर को बोला
क्योंकि उसने टाइम कमिटमेंट से काम नहीं करता, दूसरे पेंटर को बोला। तो जब वो पेंटर ने बोला कि इसकी कॉस्ट इतनी ही होगी, मैंने कहा आर यू श्योर? बोला हाँ, क्योंकि बिकॉज ऑन दैट जॉब इज मोस्ट ऑफ द वॉल पेपर पेंटिंग पोर्शन इज ओनली दिस मच परसेंट ओनली। सो आई वाज सरप्राइज के यार आप तो मुझे ओनली 20% चार्ज कर रहे थे, देन व्हाट वाज द अदर पेंटर वाज चार्जिंग। और उसके ऊपर आपको अप्रूवल भी मिल गई थी आपको? यस, एंड आई हैड अप्रूवल एंड एवरीथिंग। हाँ सो मैंने कहा ओके, गो एंड डू इट। हाँ So I had like other countries to visit on my way back. So I went to the UK, and when I come back, the job was done. And the airport and Edmonton and Airport International, I received a call, say, hey guys, Rakesh bhai, thank you. You guys done your job on time. Thank you. Your check is ready to pick up. राइट तो आप सोचो कि मुझे उसमें से जितना प्रॉफिट मिला, प्रिटी मच उससे कम डोनेशन में वहां पे करके आया था। राइट राइट पर आप देखो, जब आपकी नीयत अच्छी होती है, देन इट्स कम बैक राइट अवे। और राइट अवे मैंने Right. कोई स्ट्रगल नहीं, मैटर ऑफ जस्ट 2 कॉल्स। राइट जब आपको ऐसी इंडस्ट्री में, और वो सिचुएशन नॉर्मली ऐसा नहीं होता, फर्स्ट टाइम हुआ है, पर उसके पीछे मुझे रिजल्ट मिल गया कि दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई डन एंड रिजल्ट इज दिस। या सो टेक्निकली वो बंदे के पैसे मेरे पास है, मेरे से डोनेशन गए, थैंक्स टू हिम। बट ऐसा है कि जब आपकी नीयत अच्छी होती है तो पूरी कायनात आपको आपके गोल पूरे करने में हेल्प करती है, एंड दैट्स ट्रू। आई ऑलवेज बिलीव दैट। Beautiful, very, very beautiful. When I heard that story, that story really hit me, and that's when I also started giving back to the community as much as I could from my capacity. So thank you so much, Rakesh भाई. जी तो ऐसा करता है कि भाई आपसे बातें करी जाए, बट टाइम के भी कंस्ट्रेंट्स होते हैं. संडे मॉर्निंग है, ठीक है ना? वी हैव कमिटमेंट्स इन द मॉर्निंग्स. So we've learned a lot from Rakesh bhai. I feel like this is not going to be the first and last time he will be sitting on the chair. He will be coming back more and more. But there's a lot to learn from him and his journey. And I think we will keep learning more and more from his initial struggles to all the businesses that he's part of, to the community, to giving back. And it's all essential to be part of a whole entire package. You cannot just focus on one thing and just run with that. You have to be a complete person to be or even come close to what he's achieved in life. So thank you so much one more time. And this is again Pranshu Patel with Pranshu Unfiltered. And for more and more information and more interesting podcasts, please like, share, and subscribe us. Thank you so much.